Good morning, everyone. A warm welcome to you all. Hope you all are doing good. I hope everyone, I'm audible. Students, am I audible properly? Yes, ma'am, you are. Yes. So, in this time of pandemic, I would like to welcome you all by sharing my knowledge about a certain phrase, because this is about today's session. Uh, it is called uncharted waters. This phrase is something which helps us to find or to shift into opportunity mode and encourage us to find clarity and spur actions. So why I'm mentioning it now, as you might have got the idea, because we want you guys to know the scope in your field and grab the opportunities, whatever you have. So hence today the department has organized uh, a webinar on careers in current IT trends and technologies. And I would like to introduce about today's speaker. He has a good experience of more than 8 years and immense knowledge in the IT field. He was associated with NIIT, Seed Infotech, ITM Group of Institution in the past, and presently he is working with Squad Infotech as Sales and Marketing Manager. He has also conducted 100 plus career consulting sessions and 150 plus seminars and workshops in the colleges of Mumbai. So, and one more thing, his objective of life is to motivate and guide young minds about the career, no matter where they are. So, it's my pleasure to welcome Mr. JP Rao today. Warm welcome, sir. Hope you're doing good. I'm doing great, madam. Thanks a lot for introducing me. Yes. And Please share your knowledge with us and you can proceed with the session, sir. thanks a lot, madam. Absolutely, yes. Okay, allow me just a second to check the technicalities. Sir, I just want to record the meeting. Will you give me the It will be done from my end. I'll be sharing the recording later on. Okay, sir. Thank you. We are doing it on the cloud, so you're not downloading it from. Fine. All right, madam. Okay, so with your permission, students and faculties, I will be starting with the content for the day. As you can see on the screen, it is current trends in IT and the technologies which you have today, apart from, the regular and traditional options which you used to have, 5 years back or 10 years back. Okay, so we will be discussing about every new careers as well as the old careers, plus what is right for you amongst all these options. All right, so just give me a quick yes or no whether you can see my screen properly or not. Yep, we can. You can. Okay, and also I would like to understand whether you can chat with me or not. Just send hi on the chat box. Check whether you can write it or not. Okay, great. I can. Okay, fine. So let's start with the content. I was expecting around 80 to 90 students from this college, but till now we have around 30 students who have joined up. So it's a request to the participants who have joined now, okay, already, please request your friends to join in next 2 minutes, because I'll be starting with the content in next 2 minutes for sure. All right, but before that, let us have a general discussion with each other. Like if I want to understand who am I talking with, can you guys help me out with, like, with your qualification pass out year, on which year you will be passing out your degree, and second thing is, like, you're from IT or computer science background, which one it is? Someone computer science. All of you are from computer science? Yes. Yes, sir. Okay, great. And which year? It's like SYTY first year, which one? SYTY both. SYTY both. So in that case, I believe all the TY students are here because this is very, very important for you. Okay, SY students, you have still almost 2 years in hand, almost 1.5 years. So probably you may not be having that much of need of this session. Okay, but for TY students, yes, of course, it is very much necessary. Looking at the current pandemic situation, yes, of course, you need certain guidance because every analysis and past records are being changed.
It is quite impossible to predict what is right and what is wrong. Usually, as per the trends are concerned, every year around 30,000 to 40,000 IT graduates pass out from Mumbai itself. Okay, Mumbai itself, when I'm saying Central Harbour and Western Line. Out of those 30,000 students, I mean 30 to 40,000 students, some of them are getting a job in the college campus, some of them are going for masters, and many of them are going into non-IT doing a job because they're not getting a breakthrough in IT. And those who are getting a breakthrough in IT, they're mainly getting into something called as software engineering jobs, developers, testers, web designer, web developer, like that, all those options. But nowadays, because of the internet sensations and the trending talks and blogs, okay, people are also inclined towards something called as machine learning, data science, AI, IoT, and blockchain. So we will be understanding those in detail in our subsequent communication. But before I start with my content, one request from my side, guys, to all of you is whether you have knowledge about these things or not. I believe you have something in your mind here. You have certain amount of knowledge about these things. So you may be in a situation कि sir मुझे तो पहले से पता है. So why do I need to listen to you? If that is the case, then I believe I'm not the right person to talk to you. After having ample of year of experiences into the same field, I'm into consulting of education's career and what is right and what is wrong for a person. But I will fail, or if the case is like you already know something about it and you feel like you know everything. So my request is, give me some space in your mind to give you some new knowledge and verified and validated knowledge. So keep that in mind. अगर आप में से किसी को लगता है कि आपको ऑलरेडी आता है, ये सारी चीजें जानते हो, तो आप अभी के अभी सेशन को लेफ्ट कर सकते हो. आई विल नॉट से a single word. Okay, but if you are still want to attend my session, then थोड़ा सा स्पेस अपने दिमाग से निकाल के रखिए मेरे लिए. ठीक है, अपने चाय का कप जो है जिसको मैं दिमाग से कंपेयर करता हूँ उसको थोड़ा खाली कीजिए ताकि मैं थोड़ा चाय उसमें डाल सकूं. ठीक है जी. सो गुड टू गो गाइस. गिव मी क्विक यस और नो. स्टार्ट करें. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Guys, the one common thing between you and me is I am also an IT graduate. Okay, long back in 2012 I passed out my degree in BSc IT. Okay, and since last 8+ years I'm working in this industry. Education industry में काम करने की वजह से education and the next phase is jobs and career. इन दोनों के बीच का जो gap होता है I know it very well. ठीक है, so that is an added advantage for you guys that I am from IT background itself. Okay, and then on top of that I am going to share information based on my experiences. All right, so let's get started. The first slide says trending jobs in 2021. Okay, forget about 2020 तो ऐसे ही निकल गया, entire financial year and academic year. But yes, the entire hurdles and entire focus is on 2021 because market is going to going to be fine in subsequent time. Okay, it has started recovering from the losses which has happened last year. And yes, the graduates from 2020 are still jobless. Majority of them are still jobless. They are still fighting for their first job in life. And you guys are also about to pass out from your degree. Okay, probably in the month of June, July, you will be having your degree in hand. Yes or no, guys? Yes. Yes, sir. How many months left in that case? Hardly 5 to 6 months. Within those 5 to 6 months, you will have to make yourself ready for a job so that you will not find any struggle later on. Okay, जो struggle previous year के candidates कर रहे हैं, आपको अगर वो नहीं करना है, then proper planning, forecasting, predictions, objective setup, goal setup, keeping an aim in life, all those things will matter a lot nowadays. पहले के जमाने में क्या होता था, जब मेरे टाइम की बात करूं या फिर लास्ट टू लास्ट ईयर की बात करूं, तो स्टूडेंट्स यूज्ड टू बी वेरी वेरी कैजुअल. यार डिग्री तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, उसके बाद तो सामने से जॉब आएगी. अब सामने से नहीं आएगी, अब आपको भागना पड़ेगा. You will have to struggle, you have to find out vacancies. Yes, somebody have anything to say?
Probably she joined up now. Okay. Anyways, in case you want to say something, I'm okay with the open mic communications. You can unmute yourself and ask your questions and interact with me as well. Okay. All right. So what I was saying that jobs will not come to you directly. You'll have to go to them now. Okay. So here in that case, we'll have to plan everything properly. Okay. I'll give you a simple example. Then I'll start with the technical steps. The very first example for any girl and boy, when you reach out to an age where you are eligible for getting married, what is the process at that stage? For a girl, finding out the right candidate, the right boy is the task for the family. पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, जीवनसाथी.com से लेकर नॉर्मल रेफरेंसेस के थ्रू लोगों को पूछना कि मेरी लड़की की शादी की उम्र हो गई है, कोई लड़का है अपने पहचान में तो बताइएगा. That means the process started from there, that finding out the eligible candidate. जिसके बाद फिर पॉसिबिलिटीज देखा जाता है कि चलिए 10 हमें कैंडिडेट्स मिल गए, 10 में से कौन सा बेहतर होगा जिसके साथ मेरी बेटी की शादी कराए. बिकॉज आफ्टर इट इज ऑल अबाउट द लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर गर्ल, राइट? यस गर्ल्स, आप लोग जब शादी करोगे यही प्रोसेस फॉलो होगा, राइट? And same goes with the boys also. Even you will find out the eligible girls, and out of those girls you will decide which one to marry with. Now the finding of the girls and the boys is a similar process like finding out a job in development, in testing, in designing, in data science, in machine learning, in this, like that. That means all these options, the job profiles, are nothing but eligible candidates for you to get married with, because it is all about your career. किसी भी एक करियर को आपने चूज किया, उसके साथ शादी किया, तो उसी के साथ लाइफ गुजारना है. तलाक लेना नॉर्मल लाइफ में भी आसान नहीं है, और करियर स्विच करना भी प्रोफेशनल लाइफ में आसान नहीं है. समझ रहे हो मेरी बातें? मतलब आपने एक डेवलपमेंट में करियर चूज किया, ठीक है, यू डिसाइडेड टू बिकम एन जावा डेवलपर. आपने इंडस्ट्री में एंट्री कर ली, 4 साल बाद आपको जम नहीं रहा जावा की कोडिंग. ओके, यू आर फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट, स्ट्रेसफुल. ओके, कि आपको जावा में कोडिंग करना बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि कहाँ आ गया मैं. 5 साल की जॉब हो चुकी है, आपकी एक्सपीरियंस हो चुका है जावा में, एंड उस वक्त क्या आप स्विच कर सकते हो करियर? क्या उतना आसान है? एनीबडी फील सो कि आसान है सर, कर लेंगे हम? इट इज नियरली इम्पॉसिबल. बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है. 100 में से एक आधा केस, एक्सेप्शनल केसेस इज फाइन. ओके, बट मेनली 99% केसेस में आपके लिए आसान नहीं होगा फ्रॉम चेंजिंग फ्रॉम वन करियर टू अनदर करियर. ओके, okay, one girl to another girl switching in casual life means गर्लफ्रेंड टू गर्लफ्रेंड चेंज करना आसान है, लेकिन शादी के बाद इम्पॉसिबल. दैट मीन्स एट द मोमेंट अगर आपके मन में है कि मेरे को डेटा साइंटिस्ट बनना है, वो सही है गलत है मुझसे आप वेरीफाई वैलिडेट करा लेना. उसके बाद आपके पास चॉइस है, चांस है चेंज करने का एट दिस स्टेज. ओके, वंस यू डिग इनटू दैट, वंस यू गेट इनटू इट, बाद में अगर आपको लगता है कि सर इसमें तो मैं गलत करियर में आ गया, then switching will be very difficult. So this is what the example I wanted to share with you all. So be careful about it. So that's why I'm going to say be careful while I'm explaining everything. Note out the steps जो आपके लिए सही लगता है. आपको लगता है कि इनमें से कोई करियर जिसके में आपको जाना चाहिए, आप उसके बारे में डिटेल्ड में क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन, अगर हमारे पास वक्त बचता है तो. ठीक है? So how much time we have, guys? Till what time the session is? Is it till 12:30 or 1 o'clock? Is anybody who knows it? Or wherever, madam, can I know the deadline? I think so. You can continue up 12:30 or like as per your convenience. Okay, 12:30 will be my target. I would like to wind up the session by 12:30. Yes, sure, sir. In case students are asking questions, then we will stretch up till 1 o'clock. No problem. Okay, sir. Okay, guys, the trending job says #1 job in the world is data scientist. Okay, but we will have to equally understand whom it is designed for. Who can make career in data scientist in 2021? Okay, undoubtedly yes, you guys cannot.
1 in 100 case is possible, but 99% chances are data scientist jobs are not meant for freshers like you. It is meant for person who is having experience more than 3 to 4 years. This is what the current situation. It is trending, which means what? It is going to grow. It is going to be a common job in future 10 years down the line. Like जैसा आज के डेट में हमारे लिए डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिजाइनिंग ये कॉमन जॉब्स है, वो तो मिलना ही मिलना है, वैसा ही डेटा साइंटिस्ट के जॉब भी 10 साल के बाद कॉमन हो जाएंगे, बट नॉट नाउ. सो टेकिंग up a decision and making your career in data scientist will be really hard and difficult. Risk is very high. Okay. Second option, the trending jobs. See, there are n number of parameters behind this numberings. नंबर 1 पे डेटा साइंटिस्ट क्यों है, नंबर 2 में डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स क्यों है, नंबर 3 पे मशीन लर्निंग क्यों है. उसके पीछे देयर आर n नंबर ऑफ क्राइटेरियाज आर देयर. Salary packages, number of jobs, how many countries who has job on these profiles. Like these, there are n number of criteria and parameters जिसके बेसिस पे इसको वर्ल्ड में रैंकिंग मिला है. Data scientist, of course, something which is very catchy, something very important for any industry nowadays, because taking up decisions, I would rather say right decisions at right time, is very much important nowadays. Because software development कितने साल तक और होंगे. पहले के जमाने में डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट होते थे, उसके बाद वेब एप्लीकेशंस आए, वेब एप्लीकेशन के बाद जब मोबाइल का जमाना आया, स्मार्टफोन्स आया, तो फिर मोबाइल एप्लीकेशन भी बनने स्टार्ट हो गए. मींस जब वेब एप्लीकेशंस बनते थे उसका एक मोबाइल वर्जन भी बनने लगे. नाउ वेब एप्लीकेशन के एक्स्ट्रा वर्जन्स आ चुके हैं, हायर वर्जन्स, दोज आर क्लाउड एप्लीकेशंस. आई एम श्योर यू गाइस नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स. You must know what are the type of applications, I mean software applications, industry is developing nowadays. ठीक है, but cloud applications or a bigger volume application, enterprise applications are very important for government, for private sector, for industries, also for the individuals. So there are n number of parameters जिसकी वजह से ये rankings मिली है. Digital marketing professionals, it is for all. IT students भी कर सकते हैं, नॉन IT students भी कर सकते हैं. ओके, MBA ग्रेजुएट्स भी कर सकते हैं, नॉन MBAs भी कर सकते हैं. ठीक है, पॉइंट इज डिजिटल मार्केटिंग एक करियर है जहां पर ये डिजिटल वर्ल्ड से बिलोंग करता है. टेक्नो फंक्शनल करियर है, इसमें जाने के लिए कोडिंग आना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है. ओके, बट लॉजिकल थिंकिंग एक टेक्निक से भी पर्सन होना चाहिए. देन यू मे गेट ए करियर इन डिजिटल मार्केटिंग. ओके, डोंट थिंक लाइक कि हमारे कॉलेज में, हमारे सिलेबस में, कंप्यूटर साइंस में एंड IT में जो भी पढ़ाया गया उसी में ही करियर बनेगा, ऐसा नहीं है. You take my example. I'm a BSc IT graduate, and what kind of job I'm doing? It is not into IT. It is into consulting. It is into education. So how does it matter? So anybody can get into any career. So these are what some techno-functional and technical trending jobs in 2021, which you can target for, considering your situation. You are a fresher, तो freshers के लिए कौन सा career suitable है, हम आगे आने वाले slides में बात करेंगे. ठीक है guys, समझ में आ रहा है? Give me a quick yes or no. Yes, sir. Yes, sir. Absolutely. Good. I hope I am not making things stretchable and boring. No, sir. Okay, No, great. sir. Great. So like that, नंबर 3 रैंकिंग पे आता है मशीन लर्निंग एक्सपर्ट्स और AI एक्सपर्ट्स. बोल सकते हैं मशीन लर्निंग AI दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं. ठीक है, ब्लॉकचेन डेवलपर्स है, फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपर्स. पहले के जमाने में, इन माय टाइम 2012, 15, 18 तक का मैं बताता हूँ आपको, लाइक नॉर्मल डेवलपर्स आप हो चलता था. बट नाउअडेज द ट्रेंड इज यू हैव टू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ फुल स्टैक. मींस आपको सर्वर साइड एप्लीकेशन डेवलप करना आना चाहिए, आपको क्लाइंट साइड एप्लीकेशन डेवलप करना आना चाहिए. ओके, आई विल टॉक अबाउट दिस लेटर ऑन टेक्निकली व्हाट इज एग्जैक्टली फुल स्टैक क्या होता है. ओके, एंड ऑल्सो सिंपल टेस्टर भी नहीं चाहिए आज के डेट में. इंडस्ट्री वांट फुल स्टैक टेस्टर्स, somebody who knows manual testing, somebody who knows also automation testing, performance testing, continuous integration, continuous development, behavioral development testing. Okay, version control, agile testing. There are so many options you have within testing itself. Okay, having knowledge of varieties of testing specialization is nothing but full stack testers. Like that there are n number of careers which are trending nowadays. These are the top 6 which is there on my screen right now. All right,
We will be talking about these later on one by one, but right now let us focus on something called as what are the career opportunities we have for us now as in fresher. ठीक है, एज एन फ्रेशर वो बहुत मैटर करता है, राइट, बिकॉज प्रेजेंट इज ऑल अबाउट आवर फ्यूचर. प्रेजेंट में अगर हमें जॉब नहीं मिलेगा, डेटा साइंस की प्रिपरेशन करते बैठो, 2 साल 3 साल निकल जाएगा, तो क्या फायदा है इसमें. ठीक है, सो द पॉइंट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एश्योरिंग यू बाय showing you this slide that you guys are on the right industry, on the right career. Okay, just read these 3 statements. Okay, the first one says information technology has entered and benefited all sector of industry. इसने बैंकिंग सेक्टर को फायदा पहुंचाया, इंश्योरेंस सेक्टर को फायदा पहुंचाया, एजुकेशन सेक्टर को फायदा पहुंचाया, हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल, एचआर, एविएशन, रिटेल. कौन सा इंडस्ट्री है नहीं मुझे बताओ जिसमें आईटी इन्वॉल्व नहीं है. ओके, ये टास्क है आपके लिए. आपको एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल बी गिविंग यू माय नंबर. अगर आपको ऐसा कोई इंडस्ट्री मिलता है कि जहां पर आईटी इस्तेमाल नहीं होता है, तो जरूर मुझे पिंग कीजिएगा. ठीक है, नाउ सिंस इट इज इनटू एवरी सेक्टर ऑफ द इंडस्ट्री, व्हाट इट मींस, IT professionals are required everywhere. What do they do basically? They IT professionals design, develop, support, maintain what? Computer hardware, network, and softwares for various industrial and individual applications, and are much sought after for their expertise and experiences. Means what? आपने IT में decision लेके आए हो, education ले रहे हो, that was your right decision, whether you took it or somebody else took it on your behalf. It was a right decision that you are in the right industry जहां पर आपको कभी भूखा नहीं मरोगे आप. एक बार जॉब मिल गई, उसके बाद ग्रोथ ही ग्रोथ है, डिग्रोथ नहीं है. बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि आईटी इंडस्ट्री में स्लो डाउन होता है, ले ऑफ्स होता है, रिसेशन आता है. उससे फर्क नहीं पड़ता. इफ यू आर स्किल्ड इनफ, ओके, आपको इन सारी चीजों से कभी फर्क ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज यू विल बी ग्रोइंग डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर. ठीक है, मार्क माय वर्ड, you are on the right industry, you will be growing for sure. Okay, now the second statement says, since almost every aspect of our life has become intertwined with technology, starting with messaging applications, WhatsApp, Telegram, Signal. Okay, भारत के भी applications आ रहे हैं, संवाद. Okay, I request you, जैसे ही वो एप्लीकेशन यूजेबल हो जाए, आप उसको इंस्टॉल करके यूज करना स्टार्ट करें, एंड फॉरेन एप्लीकेशंस को एक्सक्लूड करें. ठीक है, 2 ईमेल्स, जीमेल, याहू मेल, कुछ ना कुछ ईमेल्स आप इस्तेमाल करते होंगे डे टू डे प्रोफेशनल कम्युनिकेशन करने के लिए, या फिर जॉब रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करने के लिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब में अकाउंट ओपन करने के लिए. ओके ओके, आप लोग कुछ वर्ड लेटर वगैरह प्रिंट करना चाहते हो, एक्सेल डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहते हो, पीपीटी डेवलप करना चाहते हो, एवरीथिंग. ओके, इन आवर लाइफ, कैलकुलेटर से लेकर डायरेक्शन देखने वाला कोई एप्लीकेशन क्यों ना हो, या फिर गूगल मैप क्यों ना हो, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू आवर लाइफ, जो इंटरवाइंड है. ठीक है, इट कम्स एज नो सरप्राइज दैट some of the most sought after career opportunities can be found in the information technology industry. Not only does this career choices offer a chance to make substantial income, आपको सबसे ज्यादा सैलरी इसी इंडस्ट्री में मिलेगा, but also promises long term employment, as it seems like the technology will only continue growing. Okay, अब टेक्नोलॉजी ग्रोइंग है, लेकिन टेक्नोलॉजी में बहुत सारे एरियाज है जहां पर डिग्रोथ हो जाती है. तो इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि डिसीजन प्रॉपर लेना है. जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप अगर पीएचपी डेवलपर बनने की बात करते हो, सर लेट मी बिकम ए पीएचपी डेवलपर, पीएचपी डेवलपमेंट में ग्रोथ होगा क्या? लाइक जावा, डॉट नेट एंड पाइथन नहीं होगा. तो आईटी इंडस्ट्री ग्रोइंग है, क्या पीएचपी डेवलपर ग्रो करेगा? नहीं करेगा. इसलिए बहुत जरूरी है प्रॉपर प्लानिंग. ओके, एंड द लास्ट स्टेटमेंट इन दिस स्लाइड सेज, most companies use information technology widely and IT professionals continue to be in great demand, especially those with good skills, talent, and aptitude. How many of you guys are weak in aptitude? You can personally message me on the chat box. How many of you guys are weak in aptitude? Okay, or else simple short में आप लिखिए, आप weak लिखो, weak, WEAK, चैट बॉक्स में लिखिए weak, मैं समझ जाऊंगा दिस
कीवर्ड इज फॉर एप्टीट्यूड में वीक? क्विक, 5 सेकंड्स में दे रहा हूं आप लोगों को, चैट बॉक्स में लिखिए हाउ मेनी ऑफ यू आर वीक इन एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब समझते हो ना? लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, मैथमेटिक्स। यस गाइस, वेटिंग फॉर योर रिस्पांस बैक। Yes, I started getting responses. Got from Rohan, Snehal, Kunal. Acha, those who are attending this session from mobile phone with an low bandwidth internet speed, okay, it may happen that कि आपको मेरी आवाजें थोड़ा लेट पहुंच रही होंगी और आपके उसकी वजह से आपके तरफ से रिस्पॉन्सेस थोड़ा लेट आएंगे, ओके। या फिर आप बीच में से सेशन से बाहर भी जा सकते हैं। नॉट टू वरी, जो लिंक्स आपको मैडम ने दिए हैं उसी लिंक के थ्रू आप दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, जब बाद में मैं सेशन की रिकॉर्डिंग आपके कॉलेज को प्रोवाइड करूंगा, ओके, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ एन यूट्यूब वीडियो। इस रिकॉर्डिंग को हमारे यूट्यूब चैनल में हम लोग अपलोड करेंगे, इसके बाद उसका लिंक आपको मिल जाएगा। आप उस वीडियो को जितनी बार भी चाहिए उतनी बार देख सकते हो, लेकिन आप लाइव अटेंड करोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। वीडियो देखना होता तो फिर बहुत सारे वीडियोस है इंटरनेट पे, यूट्यूब पे स्पेशली, तो वो देख सकते थे आप, ठीक है। तो फिलहाल कोशिश करना, चाहे इंटरनेट कनेक्शन आपका पुअर हो या फिर अच्छा हो, आप बार बार इसको कनेक्ट करके लाइव मुझसे इंटरेक्ट कर लेना एटलीस्ट, ठीक है। बाद में रिकॉर्डिंग तो आप देख ही सकते हो, ठीक है। सो आई गॉट द मैसेजेस फ्रॉम ओनली फ्यू ऑफ द कैंडिडेट्स दैट दे आर वीक इन एप्टीट्यूड। सम ऑफ देम आर सेइंग दैट दे आर 50% वीक, 50-50 उनको आता है, and rest of you have not written anything. That means you guys are very good at aptitude. Okay, congratulations. You will come to know when you are going to face that aptitude test, because every IT jobs, okay, nowadays has aptitude test, irrespective of profiles. Just a minute guys, irrespective of profiles, आपको पहला इंटरव्यू में जो राउंड होगा, okay, वो रहेगा एप्टीट्यूड। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को लगता होगा सर एप्टीट्यूड इज नॉट पार्ट ऑफ द इंटरव्यू प्रोसेस। एप्टीट्यूड राउंड में मैं गया, फेल हो गया, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं इंटरव्यू दिया ही नहीं। आप किसी कंपनी में जाते हो, वहां पर पहला राउंड है एप्टीट्यूड, दूसरा राउंड है लेट्स से जीडी और टेक्निकल राउंड। देन टेक्निकल राउंड के बाद कंपनी वांट्स टू सेलेक्ट यू और रिजेक्ट यू फाइनली, तो एचआर राउंड होता है, ओके। नाउ एप्टीट्यूड टेस्ट मशीन में भी हो सकता है, रिटर्न में भी हो सकता है, ठीक है, या फिर ऑनलाइन भी हो सकता है, ठीक है। मशीन में ऑफलाइन टेस्ट हो सकती है, मशीन स्पेसिफिक होता है, या फिर ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट भी हो सकता है। क्वेश्चन पैटर्न भी किसी तरह का भी हो सकता है, एमसीक्यूज हो सकता है, सिनेरियो बेस्ड हो सकता है, ठीक है। वॉट एवर इट इज, इट विल कंप्राइजेस ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग, एल्जेब्रिक, मैथमेटिक्स, इंग्लिश वर्बल वाला, सारे कॉम्बिनेशन के हिसाब से आएंगे। अब ये टेस्ट अगर आपने फेल हो गए, अगला राउंड में जा ही नहीं सकते, मतलब उस कंपनी का इंटरव्यू में आप क्या हो गए, रिजेक्ट, ओके। नाउ एप्टीट्यूड इज समथिंग व्हिच इज अ स्किल, कोई आपको सिखा देगा और आपको आ जाएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको प्रैक्टिस 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 करना पड़ेगा। जैसे गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते देखो बच्चे, यूपीएससी, एमपीएससी, एसएससी वगैरह के लिए प्रिपरेशन करते, व्हाट डू दे डू, दे प्रैक्टिस थ्रू आउट द ईयर, 6-8 घंटा घर पे पढ़ाई करते, तब जाके वो एग्जाम क्रैक होने के लायक बन पाते वो। आपको तो बस एक इंटरव्यू क्रैक करना है। इंडिया में वी हैव 17,000 IT कंपनीज, मेक ए नोट ऑफ इट। In India, we have 17,000 IT companies. It's plus, okay? Now, out of the 17,000 IT companies, आप अपने पूरा एंटायर करियर में सिर्फ और सिर्फ 7 से 10 कंपनीज में काम करने वाले हो, ये भी लिख लो। आपको हर बार सिलेक्शन के लिए एक कंपनी की इंटरव्यू क्रैक करनी है, ओके। हो सकता है हर एक इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आपको 10 से 15 इंटरव्यू देना पड़े। तो लाइफ में आप अगर 10 कंपनीज में काम करने वाले हो, मतलब 10 सिलेक्शन होने वाले आपके लाइफ में, अभी 15 पकड़ो, चलो आपको बहुत खुशी होगी, हर 2 साल में एक कंपनी चेंज करोगे तो आप कर सकते हो। फिर उससे आपको प्रॉब्लम होगी आपके लाइफ में आगे जाने के बाद, एट द एज ऑफ 35-40 की एज में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आप 20-21 साल की उम्र में करियर स्टार्ट करेंगे, पहला 10 साल में अगर आपने 5 कंपनी चेंज कर लिया ना,
फिर उसके बाद आपको खुद के वजह से ही प्रॉब्लम होगी। तो वैसा तो आप नहीं कर सकते, यू विल कम टू नो। बट एनीवेज जनरली द एनालिसिस सेज हर एक इंसान आईटी इंडस्ट्री में हो या फिर नॉन आईटी में हो अपने लाइफ में 7 से 10 कंपनी में काम करता है। ये 17,000 कंपनी जो इंडिया में है, ओके, फॉरगेट अबाउट द फॉरेन कंपनीज जो फॉरेन में है, इंडिया में नहीं है, ओके। 17,000 कंपनीज में से सिर्फ 10 कंपनी में तुमको काम करना है। उन 10 कंपनी में एप्टीट्यूड रिक्वायरमेंट है, तो आप उसके लिए तैयारी नहीं करना चाहते या फिर करोगे नहीं, बोलोगे ऐसे ही हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। सो व्हाट माय पॉइंट इज हियर इज, आप सभी को कॉलेज की जो भी स्टडीज है, आपकी थ्योरी है, प्रैक्टिकल है, वाइवा है, सबमिशंस है, फाइनल एग्जाम्स है, ओके, ये सारे चीजों के साथ साथ आपको अलग से टाइम निकालना पड़ेगा फॉर व्हाट, फॉर एप्टीट्यूड स्किल सेट्स डेवलपमेंट along with technical skills and life skills. Life skills मतलब behavioral aspect, aptitude, sorry attitude, then temperament आ जाता है उसमें। शॉर्ट नंबर होंगे आप में से बहुत सारे बच्चे जिसको इंटरव्यू में बुलाया गया 10 बजे और इंटरव्यू लिया गया 1 बजे, वो 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में वो कंपनी में बैठे बैठे बहुत सारे रिएक्शन दे देगा। क्या यार 10 बजे बुला लिया था और 11 बज गया, इंटरव्यू नहीं हुआ, पागल है क्या, वगैरह वगैरह आप एटीट्यूड में बात करेंगे और आपके सारे जो टेम्परामेंट है वो रिकॉर्ड होती रहेगी सीसीटीवी में। फिर बाद में इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में इंटरव्यूअर भी आपको सुनाता है, आई मीन इनडायरेक्टली कोशिश करता है कि आपका टेम्परामेंट को और चेक करने के लिए, और फिर अल्टीमेटली आप ऐसे कुछ ना कुछ गलती कर देते उसके सामने बिना इंटरव्यू में जाने से पहले। उस वेटिंग एरिया में ऑलरेडी बहुत सारे गलती करोगे, प्लस इंटरव्यू में भी गलती करेगा और बाद में बोले कि सर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, मुझे समझ में नहीं आया। तो ये सारी चीजें होती है आपके साथ अगर आपकी लाइफ स्किल्स प्रॉपर नहीं है तो। बिहेवियरल एस्पेक्ट, एटीट्यूड, टेम्परामेंट, communication skills, presentation skills, all those things. And I'm sure your college is taking a lot of steps towards developing all this talent on yours, and you guys are taking the benefit out of it. If I ask you guys straightforward, क्या आप सभी लोग इन सारे स्किल सेट्स को डेवलप कर रहे हो? I want answer right now. Yes or no? Trying. Others? I want to listen from everyone. आप सभी से म्यूट करके मत बैठिए, चैट बॉक्स में लिखिए या फिर अनम्यूट करके बोलिए। Are you guys preparing for your skill developments, talent enhancement, aptitude, ये सब कर रहे हो? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Great, great. Okay. देखिए ये सारे जो चार्ट्स है ना, आई एम गोइंग टू सेव दीज चार्ट्स, ठीक है। कुणाल ने बोला यस सर, सिद्धेश ने भी बोला यस, शिवम ने भी बोला यस। अगर आप डिग्री के बाद आपको विद इन 6 मंथ जॉब नहीं लगा ना, आप तीनों को मैं पकड़ने वाला हूं आपको कॉलेज में आके। कॉलेज से बाहर चले जाओगे ना, ठीक है, कॉलेज से मैं एड्रेस लेके आऊंगा आपके घर पे, ठीक है। तो यस यहाँ पे बोल दिया तो आपको उसको पूरा भी करना है, टेक ए चैलेंज, ठीक है। ओके, गुड टू गो, नेक्स्ट स्लाइड। हियर वी आर। मेनी ऑफ यू मस्ट बी हैविंग कंफ्यूजन इन माइंड कि सर जॉब प्रोफाइल जो होता है ना आईटी कंपनीज में, मैंने सुना है किसी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का प्रोफाइल मिला मेरे दोस्त को, वो काम करता है जावा डेवलपमेंट में, लेकिन उसका प्रोफाइल का नाम है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। दूसरा कंपनी में मेरा एक और दोस्त को जॉब मिला, उसको जॉब मिला है डॉटनेट डेवलपमेंट में, डॉटनेट डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट में काम कर रहा है वो, और उसका प्रोफाइल दिया है जूनियर डेवलपर। तो सर ये जूनियर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये अलग अलग होते हैं कि सेम होते हैं? कैन एनीबॉडी आंसर दिस? सेम होते कि अलग अलग होते? So, do you mind repeating the question? I'm so sorry, my internet is bad. No problem. My question is, many times students get confused between profiles and job, I mean work stuffs. Profile name is software engineer and the person is working in Java development. He is working on Java projects. Another profile name is junior developer. The person is working in .NET development projects. Now, my question is, software engineer एंड जूनियर डेवलपर, क्या ये दोनों प्रोफाइल नेम सेम है कि अलग अलग? सर सेम है। ओके, हाउ? सर अभी बोलता है फ्रेशर, सो उन लोग को भी फ्रेशर के प्लेटफॉर्म पे भी गिना जाएगा ना? करेक्ट करेक्ट, लेकिन प्रोफाइल अलग अलग नाम क्यों दिया गया?
Sir, I would like to contradict because like if we are working on a different environment on different platforms, so like your expertise will be on a different. Let's say level. like if I'm learning Python and someone else is learning Java or C++. So Mhm. like like they are different, though they do the same thing, but they are different languages. The workflow is different. It's not like that. What's your name? Vivek. Vivek, it's not like that. It is the company's policy. It is the company's label. There are companies from startup categories. There are companies from mid-size categories. There are companies from large-scale categories. There are companies from MNC categories. Company-wise, the profile names are being designed and given. Okay. Otherwise, whether you are developing a project on Python or in .NET or in Java or in PHP, doesn't matter. You are a developer or you are a programmer. Okay, but companies policy wise you have been given the profile names as different profile names. Is that clear? For instance, one company may recruit a developer while another company recruits a programmer. दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता. Okay, काम दोनों को डेवलपमेंट का ही करना है, काम दोनों को कोडिंग ही करना है. Okay, like that some company may hire quality analyst and some company may hire for a position called as software tester. इन दोनों में भी कोई फर्क नहीं है, because ultimately you are supposed to do testing, you will be doing verification and validation. Okay, but if a company is hiring manual tester, another company is hiring automation tester, then दोनों में फर्क है, because manual tester is one specialization within testing, automation tester is another specializations. Okay, but in development there is no differences between programmer and developers. They are just for the namesake they are being different. All right, everyone. Okay. Okay, but what do you should do, I mean, in case you are planning to become a Java developer or you are planning to become a Python developer? Okay, because there is a catch in this. What happens in MNC companies? Okay, I'm not talking against MNC company, but this is the process. Okay, what I'm about to say now. MNC company will come to colleges, or they will do an open campus, school campus, or they will go to an university to hire candidates from campus, right? Now, they usually have criteria, 60% throughout, no etiquettes, current year pass out, bagara bagara. Okay. Now, they hire candidates in bulk. They train those candidates, those have been recruited for 3 months or 6 months under the entry level training program, whichever they have. Okay. For instance, Infosys has a training program for 6 months in their Mysore campus. वहां पे 6 मंथ्स के दौरान ओके वो सारे मान लीजिए कि उन्होंने 1000 कैंडिडेट्स को रिक्रूट किया 2020 में एंड उनको उन्होंने ट्रेनिंग प्रोवाइड किया 6 मंथ्स के लिए. आउट ऑफ दोस 1000 कैंडिडेट्स आप एक ऐसा कैंडिडेट हो जिसको जावा में अच्छा खासा स्किल्स डेवलप है, उसने कोर्स भी किया था अलग से कॉलेज के साथ साथ, एंड ही हैज डेवलप्ड सर्टेन प्रोजेक्ट्स इन जावा एज वेल. ओके, वो कैंडिडेट को ट्रेनिंग मिला, कॉमन ट्रेनिंग मिला 6 महीने का इन्फोसिस के तरफ से. उनको बहुत सारी चीजों में ट्रेनिंग दिया गया, उनको फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी सिखाया गया, बैक एंड टेक्नोलॉजी सिखाया गया, उनको ऑपरेटिंग सिस्टम सिखाया गया, उनको टेक्निकल सपोर्ट, एप्लीकेशन सपोर्ट, वो सारी चीजें सिखाया जाता है विद इन 6 मंथ्स ऑफ टाइम, जो उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम है. इसके बाद वाइल डिप्लॉयमेंट, ओके, वाइल डिप्लॉयमेंट मतलब 6 मंथ्स के ट्रेनिंग के बाद अभी आपको प्रोजेक्ट असाइन होना चाहिए. जब प्रोजेक्ट असाइन होता है उसको हम बोलते हैं स्टाफिंग और डिप्लॉयमेंट. ठीक है, डिप्लॉयमेंट के वक्त आपको एक प्रोफाइल ऐसा दिया गया जो कि जावा से जुड़ा हुआ है बिल्कुल भी नहीं है. क्या करोगे आप तभी? एनीवन? योर स्ट्रेंथ्स आर इज इनटू जावा, but you are getting a job profile from your company Infosys, okay, into something else which is not at all related to Java. What will you do at that situation? Anyone would like to answer this? Non-water, like if they are providing a specific job, so वो training period में उन्होंने वो सिखाया होगा ना? No, they are providing you a profile called software engineer, which means it is not specifying that whether it is the profile for Java or it is the profile for .NET or it is the profile for PHP or Python or technical support or software engineering, what it is. Okay,
It is not specified. It is only software engineer, because every MNC company will hire you on these positions, these profiles. Okay, these are the names: junior engineers, software engineers, okay, training developers, like that you will be getting. There is no specification about it. Okay, after 6 months training, you will come to know what is the reality of that particular job profile, and you got to know that it is different from what I'm expecting. So my question here is, what will you do at that situation? So learn and adapt. Learn and adapt मतलब आप compromise करोगे. If you want that company badly, like, then you you can. Correct. Now this is where the answer should be person specific and interest specific. Like you rightly said, what's your name, dear? So Alicia. Alicia, very nice answer. You have good understanding and sense of mind. I would rather say this is a compliment for you. And also the other guys who are interacting with me, that you guys are interactive. Okay, and those who are not interacting with me, be careful guys, interaction is must. Okay, ये तो खैर ये तो अभी कॉमन सेशन है आप सभी के लिए. मैं तो इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ. मेरे से आप अगर कम्युनिकेशन करोगे, आपसे कुछ गलती हो जाएगी तो कोई मारने वाला नहीं है आपको, या फिर आपका कोई लॉस नहीं है यहाँ पे. इट इज ओनली गेनिंग ऑफ थिंग्स. ओके, बट अभी अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे इंटरेक्टिंग विद एन इंडस्ट्री पर्सन, लेटर ऑन व्हेन यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ एन इंटरव्यूअर, जो कि आपका सगा नहीं होता है, जो कि आपका पहचान वाला बिल्कुल भी नहीं है, उससे कैसे बात करोगे? ठीक है. एनीवेज, what I was saying that it is person specific. It is your own interest, it is your own plan, it is your own priorities. आपको इन्फोसिस कंपनी चाहिए था, तो इन्फोसिस में जो भी काम मिलेगा आपको करना पड़ेगा. यू कैनॉट डिनाई एट दैट स्टेज कि सर मेरे को ना जावा में काम करना था, आप मुझे जावा में ही जॉब दो. कोई नहीं सुनने वाला उस वक्त. It never happens. In my career of last 8 years, I've never seen anybody's request has been accepted or something like that. I have n number of examples with me. My personal friends are working in Infosys, TCS, Wipro, and other IT companies. It has happened with majority of them. Almost 70% बच्चों के साथ ये हुआ है. देखिए 30% लकीली ऐसे होते हैं जिनकी इंटरेस्ट एक एरिया है और उनको जब काम मिलता है उसी से जुड़ा हुआ मिलता है. So that is only 30%. ठीक है. So in case it is happening with you, you are in the 70%, then decide accordingly. And for that also make up your mind from today. Okay, otherwise ऐसे भी केसेस हमने देखे. You can check out on your YouTube. Okay, कि मैसूर में सुसाइड पॉइंट क्या होता है. इन्फोसिस के कैंपस के आसपास कहीं तो एक सुसाइड पॉइंट है, उसकी पीछे का स्टोरी आप एक बार देख लेना आज. ठीक है. बच्चे उस चीज के लिए मेंटली रेडी नहीं रहते हैं, और ऑल ऑफ सडन जब वो चीज होता है, मतलब एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल में डिफरेंस आ गया, तो बौखला जाते हैं. डिसीजन लेते कि मतलब कि नहीं मुझे अभी जीना नहीं है लाइफ में, मैं सुसाइड कर लेती हूँ. ऐसा बहुत बार हुआ. ठीक है. सो आई एम यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म टू नो मेकिंग यू अवेयर ऑफ दीज थिंग्स. सो मेक ए नोट ऑफ दिस एज वेल. आपको लाइफ में क्या बनना है, अगर उसके हिसाब से तैयारी कर रहे हो, अगर वो नहीं मिलता कल को, लर्न, अडॉप्ट, कॉम्प्रोमाइज एंड कैरी ऑन विथ इट. ठीक है. नाउ द मोमेंट ऑफ ट्रूथ. द ट्रूथ इज, sir, tell us the profiles which are meant for freshers. On my screen, you can see there are 5 options I have written on in bold letters. Number 1 is software or application developers. Number 2 is software testers. Number 3 is web developer or designers. Number 4 is customer support specialist. Number 5 is computer network specialist, and many more. Okay, these are important ones, that's why I have written it, and I'll be discussing about them. Shall I go to the next slide, guys? Give me a quick yes or no. Yes, sir. If everything is fine, no question till now, right? Sir. No, sir. Good to go. Check out on my screen and read the statement what is written over here. The heading says software and application developers. The description says software developers designs, run, test various computer programs and applications. Application developers create new applications and code solutions. There is a slight difference between software developers and application developers. Application developers are specific towards new application developments and coding of the
products or projects. Okay, what happens basically in software development, you are bit more occupied with several other tasks. Like in one of the company, it may happen that you are a person who is coding the software, you are running the code, okay, you are checking whether the functionalities are developed properly or not. What it means, you are also testing it, okay, you are also going to design it. That means you will be doing the entire life cycle, major stages of your life cycle software development का जो होता है, आपको वो पूरा करना पड़ेगा. तो ऐसे केसेस में आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर का प्रोफाइल मिल जाता है, because you are doing more than coding. Getting my point? However, an application developer is a specified profile who is responsible for coding, especially coding and coding. जहाँ पर वो coding of your front end करेगा, coding of the back end करेगा, back end में server side आएगा and database आएगा. Database के लिए SQL, PLSQL में coding करेगा, structured query language and PLSQL, programming language using SQL. I hope you know those things, guys. Yes, sir. Now, having knowledge of software development lifecycle, having knowledge of programming languages, having knowledge of front end and back end means what? You can get a job in the industry as a software or application developer, which is the most common job for every IT professional. Okay, example के तौर पे यहाँ पे जो स्क्रीन में आपको प्रोफाइल दिख रही है, इट इज इन द सीक्वेंस फ्रॉम A to Z. ठीक है, यहाँ पर कुछ फ्रेशर प्रोफाइल के नाम भी है एंड कुछ एक्सपीरियंस प्रोफाइल के नाम भी है. बस नाम देख लेना. ठीक है, फ्रेशर्स के लिए क्या क्या हो सकता है? एप्लीकेशन डेवलपर हो सकता है, एप्लीकेशन इंजीनियर हो सकता है, डेवलपर हो सकता है, जावा डेवलपर हो सकता है, जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डॉटनेट डेवलपर, प्रोग्रामर. ओके, प्रोग्रामर एनालिस्ट भी हो सकता है. देन you have something called a software quality analyst, software engineer, software developer, नीचे लिखिए. या फिर system software engineer. No, that is not for freshers, that is for experienced people. Now, having knowledge of development, coding, front end, back end, you will be landing up in the industry in these profiles with a job and career आपका accordingly बनेगा. ठीक है? Any doubt here, guys? Because No, sir. we will No, not be sir. going, because we will not be going in detail about these profiles technically, because this session is about guidance, right? तो मैं आपको जावा डेवलपर में क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो नहीं बताऊंगा. बट आई नो अबाउट इट. इन केस यू वांट आंसर ऑफ इट, यू मे आस्क टुवर्ड्स द एंड, जैसे हमारे पास टाइम बचेगा तो. ठीक है, सो फिलहाल यू गाइस कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ एवरी स्लाइड. ओके, इन केस यू वांट टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस स्लाइड टुवर्ड्स द एंड. ठीक है, टेक स्क्रीनशॉट्स. So conclusion about this slide is having knowledge of HTML, CSS, jQuery, JavaScript, Ajax, JSON, okay, then core Java, advanced Java, JSP, Sublet, जिसमें आपको सीखने मिलेगा advanced Java में. Then you have something called as frameworks, Spring, Hibernate. फिर .NET की बात करेंगे तो C#, ASP, ASP.NET with MVC, ASP.NET Core, okay. Then you have something called as PHP, okay. Then you have Python, core Python, then Django framework या फिर Flash, okay. कोई भी frameworks में आप web development कर सकते हो. Mainly Django सबसे ज़्यादा popular है, वो आता है. प्लस आपको सर्वर साइड में Node.js आता है, क्लाइंट साइड में आपको AngularJS आता है, React.js आता है. तो इन सारे चीज़ों को अगर नॉलेज आपके पास है, देन विदाउट डाउट आप सॉफ्टवेयर डेवलपर तो पक्का बनी जाओगे. ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्लाइड. द नेक्स्ट स्लाइड सेज सॉफ्टवेयर डेवलपर के बाद कौन सा एक प्रोफाइल होता है जो यूजुअली कॉलेज ग्रेड्स ऑप्ट करते हैं, दैट इज वेब डेवलपर्स. ओके, you may get confused between web designer and web developer, but not to worry. Web designer is the front end part, web developer is the front end plus the back end part. देखिए, दुनिया में अलग अलग टाइप की वेबसाइट होती है. वेबसाइट को हम क्या बोलते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब, राइट? वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए वी नीड इंटरनेट, वी नीड एन एक्सटेंशन, वी नीड अ प्रोटोकॉल, HTTP, HTTPS. ओके, डोमेन नेम चाहिए, डोमेन एक्सटेंशंस भी चाहिए होता है, .in, .com वगैरह वगैरह. इन शॉर्ट डोमेन नेम चाहिए. किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए आप एक डोमेन नेम टाइप करते हो ना ब्राउजर में. क्या करते हो किसी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए आप लोग? Domain name or URL. डोमेन नेम और URL, इसको यू कैन कॉल इट एज URL स्टैंड्स फॉर, yes, URL stands for
Somebody has written in the chat box. Let me quickly have a look. Uniform resource locator. Universal resource locator, yes, will do. Okay. It's uniform, right? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूनिवर्सल भी आप बोल सकते हो. सी इट्स ऑल अबाउट डिक्शनरिकल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स. ओके, यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो, राइट? इट्स नॉट लाइक कि आप अमेरिका में हो, कोई इंडियन साइट आप ओपन नहीं कर सकते हो. आप इसको यूनिवर्सल भी बोल सकते हो, लेकिन प्रिसाइसली टेक्निकली अगर उसका मीनिंग अगर हम आई मीन एब्रीविएशन अगर बोलेंगे तो इट हैज टू बी यूनिक और यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. ओके, हर बार आप किसी वेबसाइट को लॉग इन करोगे तो वही वेबसाइट वही पे वेब पेज ओपन होना चाहिए. बार www.squadinfotech.in ओपन करने के बाद कोई दूसरा वेबसाइट ओपन नहीं होना चाहिए. इज दैट क्लियर? दैट मींस इट शुड बी यूनिक एवरी टाइम. नाउ क्वेश्चन इज कि सर ठीक है, हमें तो पता है कि वेबसाइट वगैरह एक्सेस कैसे करना है, एंड वी आल्सो नो हाउ टू डिजाइन अ वेबसाइट. वेबसाइट डेवलपमेंट मींस व्हाट? द डिस्क्रिप्शन सेज वेब डेवलपर्स डिजाइन, क्रिएट एंड मॉडिफाई वेबसाइट्स. ओके, किसी वेबसाइट की कैटेगरी की अगर बात करें तो स्टैटिक होता है, डायनामिक होता है. और कोई टाइप है क्या वेबसाइट के टाइप्स? स्टैटिक, डायनामिक, और कोई है टाइप? होगा तो मुझे बता दीजिएगा. जैसे मैंने पहले भी एक क्वेश्चन पूछा था आपको, मुझे पिंग कर दीजिएगा, ठीक है? एनीवेज, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? मेंटेनिंग ए यूजर फ्रेंडली स्टेबल वेबसाइट दैट ऑफर्स द नेसेसरी फंक्शनैलिटीज फॉर देयर क्लाइंट्स नीड. मेरा वेबसाइट है, मेरे कंपनी का वेबसाइट है squadinfotech.in. If you log on to my website, you will find necessary informations with basic functionalities. Basic functionalities मेरे वेबसाइट में क्या है? मेरे वेबसाइट में एक मैप है, गूगल मैप है. मेरे वेबसाइट में कॉन्टैक्ट अस फॉर्म है, ठीक है? ये फंक्शनलिटीज है जो जिसपे आप कुछ एक्शनेबल चीजें कर सकते हो. जैसे कि कॉन्टैक्ट अस फॉर्म भरोगे, आपका नाम, नंबर, ईमेल आईडी, आपकी क्वेरीज आप उसमें पेस्ट करोगे एंड देन आप उसको एंटर करोगे तो उसके जो डेटा है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन आपने दिया है वो मेरे पास आ जाएगा. That means there is a functionalities for which we have a server space, we have a database जहाँ पर वो डेटा जाके स्टोर हो रहा है. फिर वो डेटाबेस से मैं डेटा पुल करके मैं इस्तेमाल करता हूँ. ओके, मेरे क्लाइंट की नीड क्या है? क्लाइंट मतलब जो मेरे वेबसाइट में आएंगे, उनकी नीड क्या है? उनकी नीड क्या है? उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए अबाउट स्क्वाड इन्फोटेक एंड इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो मेरे वेबसाइट में है. जो नहीं है उसके लिए वो क्या करेंगे? कॉन्टैक्ट अस फॉर्म भरेंगे या फिर मेरे लोकेशन में ट्रैवल करेंगे. तो मेरे वेबसाइट को जब मैंने डिजाइन डेवलप किया तो आई हैव यूज्ड एवरीथिंग अकॉर्डिंगली. क्लियर? नाउ दिस इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू फॉर एवरी वेबसाइट इन दिस वर्ल्ड. आपको डिजाइन करनी है, उसको डेवलप करनी है. उसका फ्रंट एंड डेवलपर का प्रोफाइल जॉब मिल सकती है इसमें आपको. इसमें वेब डेवलपर का जॉब मिल सकता है, ओके, या फिर वेब डिजाइनर का जॉब मिल सकता है. यूआई एंड यूजर एक्सपीरियंस, ओके, यूआई यूजर इंटरफेस एंड यूएक्स यूजर एक्सपीरियंस, इसमें भी काफी अच्छा खासा जॉब मिलता है इंडस्ट्री में. सो इन केस यू डोंट वांट टू बी अ हार्डकोर प्रोग्रामर, then this is the next option which you can think of making right after of your college degree. ठीक है जी? And some cases in some startup companies, some small scale companies, not having degree also you will get a job in this field, this profile. Anybody is disagreeing with me on this point कि नहीं सर डिग्री ही लगेगा इसमें जॉब करने के लिए, डिग्री के बिना इसमें जॉब मिलेगा ही नहीं? एनीबॉडी? नो सर. ओके, आप कोई स्पेसिफिक कोर्स कर सकते हो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन किसी भी इंस्टीट्यूट से. ओके, फ्रंट एंड डेवलपमेंट या फिर क्लाइंट साइड डेवलपमेंट, इस तरीके के कुछ कोर्स करेंगे जिसमें आपको HTML CSS वगैरह सबके साथ साथ जावास्क्रिप्ट वगैरह सीखने का मौका मिलेगा एंड आप एक जॉब इसमें से ले सकते हो. ठीक है? सो दिस इज फॉर समबडी हु इज नॉट लुकिंग आउट फॉर ए जॉब इन हार्डकोर कोडिंग. ओके, जावा, .NET, PHP, पाइथन में जाना नहीं है तो यहाँ चले जाओ. एंड फॉर दोस who do not want even to script, जिसको जावास्क्रिप्ट भी नहीं करना है, ठीक है, उस लेवल पे नहीं करना है, then for them I recommend you to go for something called as software tester. ये वाला software testers, little bit about the software testers I will speak here because in college life you won't get much information about software tester because there is only one subject related to software testing you have in the final year or final semester. I don't remember now. I mean, you have a new syllabus,
You guys can help me out. कौन से सेमेस्टर में है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से जुड़ा हुआ सिलेबस? Semester 4 or 3 or 5? 5. We had it in 5. So And you 5. in this semester you have right now, correct? No, the last semester. This is semester 6. Actually, you are in the semester 6 now. Okay, my bad. All right. So in the semester 5, when you learned software engineering, software testing के बारे में पता चला आपको, there are labels of testing which is been done on a software or an application. The very first label is known as, what is that? Module testing. जो डेवलपर हर एक मॉड्यूल को डेवलप करते हैं उसको मॉड्यूल वाइज टेस्ट भी करना पड़ता है. Who does it? The developer itself does it. फिर सारे मॉड्यूल्स को इकट्ठा करके वो इंटीग्रेशन टेस्टिंग करता है. ठीक है. इंटीग्रेशन टेस्टिंग होने से एक कंफर्मेशन आ जाता है डेवलपर को कि whatever the application wanted me to code and develop, it has been developed and it is ready to use. फिर वो सॉफ्टवेयर को रेडी करके आगे भेज देता है. आगे जाता है तो सिस्टम लेवल का चेक होता है, सिस्टम टेस्टिंग होती है, जहां पर कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से, कस्टमर रिक्वायरमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक टीम है जो स्पेशली सॉफ्टवेयर को चेक करेगा. तब तक सॉफ्टवेयर .exe फाइल में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब इट इज रेडी टू बी यूज्ड एटलीस्ट बाय द इंटरनल पीपल. एटलीस्ट उसके ऊपर अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग वगैरह हो सकता है बिफोर एक्चुअली मेकिंग इट लाइव. बट अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग के बाद आएगा. सिस्टम टेस्टिंग में कौन काम करेगा और क्या काम करेगा? A person who is a software tester will be working on system testing level, जहां पर वो हर एक फंक्शनलिटीज एंड नॉन फंक्शनलिटीज को वन बाय वन वेरीफाई एंड वैलिडेट करके चेक करेगा. ठीक है. उस काम को करने के लिए उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस है. द पर्सन कैन डू इट मैनुअली और द पर्सन कैन डू इट ऑटोमेटिकली. ऑटोमेटिकली मीन्स उसमें भी उसको कोडिंग करना पड़ेगा, बट देयर आर सम सॉफ्टवेयर टूल्स लाइक सेलेनियम वेब ड्राइवर वगैरह आपने पढ़ा होगा कॉलेज में. ओके. JMeter. Okay. Yes or no? Those Yes, software. sir. Yes. So those softwares will do the task on behalf of you. What task? The execution of testing. Planning and writing test cases is still with that human being who will be writing that script for automation testing. Okay. What it means? The manpower requirement will always be there in testing section as well. Whether the market is moving towards automation or not, manpower requirement as a tester is always necessary. And that's where the basic profiles of software testing is demanded in the industry. Majorly manual testing profile मिलता है freshers को, उसके बाद automation testing की profile मिलती है, फिर performance testing की profile मिलता है. Then later on the person can also go for some specialized testing profiles also, like security testing होता है. You have something called as ETL testing, data warehousing के ऊपर होता है वो. Then you have something called as cloud testing. Okay. You have something called as continuous integration, build automation, behavioral driven testing, mobile automation testing, Cucumber, Cylinder करके tools use होता है. Okay. API testing. There are so many specializations also there. जितना ज्यादा स्पेशलाइजेशन आप अपने करियर में करेंगे उतना ज्यादा बेहतर टेस्टर आप बनेंगे. एंड सैलरी विल बी इक्वल लाइक ए डेवलपर एंड डिजाइनर. डिजाइनर की सैलरी तो वैसे भी कम होता है डेवलपर टेस्टर से, बट हाँ कुछ कुछ कंपनीज में ऐसे होता है जहां पर डिजाइनर की सैलरी भी अच्छा खासा रहता है डेवलपर को टेस्टर की जैसा. ठीक है. बट टेस्टर्स आर कंपेयर्ड विथ डेवलपर्स. हमेशा से टेस्टर वर्सेस डेवलपर की कंपैरिजन हमेशा से होते आ रही है सिंस लास्ट 10+ ईयर्स. 2009 ऑनवर्ड्स टेस्टर्स की डिमांड मार्केट में बढ़ गई. दैट मीन्स व्हाट? टुडे इन द मार्केट equally you will find a rewarding career in software testing. Okay. The point is application development, software development, web development is not the only choice you have. You also have software testing. That was my communication. I hope it is clear, guys. Give me a quiz, yes or no. Yes, sir. Okay, great. सभी लोगों को समझ में आ रहा है, right? Yes, sir. One second. Just give me a moment. I got a call. Yeah, thank you so much for holding, guys. Now,
Apart from software engineering related jobs like development, testing, web designing, web development, what else you have? You also have something called as database development, database administration, but those are not meant for freshers. I'll tell you the reason behind as well. आप मुझे सच सच बताइए, सॉफ्टवेयर को डेवलप करते वक्त जो बैकएंड डेवलप करनी होती है, मतलब जो डेटाबेस डेवलप करना होता है, उसके लिए क्या कंपनी अलग से एक डेटाबेस डेवलपर हायर करेगा क्या? No. छोटा सा काम होता है ना, लिमिटेड काम होता है, तो डेवलपर हिमसेल्फ विल डू दैट. एसक्यूएल एंड पीएलएसक्यूएल ही तो सीखना है, एंड वो काम तो आज अपने कॉलेज में भी आप कर रहे होंगे. कॉलेज के जो प्रोजेक्ट्स आपने डेवलप किए हैं, आप ही ने डेवलप किया रहेगा ना आपके डेटाबेस बैकएंड. यस और नो? Yes sir. दैट्स द रीजन स्पेशली डेटाबेस डेवलपमेंट में अलग से किसी भी कंपनी में प्रोफाइल नहीं मिलता है. ओके, एक आधा कोई केसेस हो सकता है, कोई बड़ा कंपनी है जहां पर अलग से उन्होंने टीम सेटअप करके रखा है डेटाबेस डेवलपमेंट के लिए. ओके, अदरवाइज nobody, startup companies, small scale company will never have a separate team for database developers. Make a note of it. आप में से बहुत से बच्चे होते हैं, जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 8 साल का. बहुत से बच्चे इंक्वायरी करने आते हैं स्क्वाड इन्फोटेक में कोर्सेज के लिए, बोलते सर मेरे को ना प्रोग्रामर बनना नहीं है, डेवलपर नहीं बनना है, और टेस्टिंग के बारे में ज्यादा पता नहीं होता है बच्चों को, तो उनका इंटरेस्ट ही नहीं रहता है. क्योंकि उनको एजुकेशन जब मिलेगा टेस्टिंग के बारे में, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट होता है ना कॉलेज में, जबकि प्रोग्रामिंग आप बचपन से सीखते आ रहे हो, मतलब फर्स्ट ईयर से सीखते आ रहे हो. ओके, हर साल प्रोग्रामिंग से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट सीखते हो, तो फिर प्रोग्रामिंग की तरफ इंक्लिनेशन ज्यादा जाता है, राइट. फिर प्रोग्रामिंग अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होता, तो फिर आप ऑप्शंस दूसरा ढूंढने लगते हो, कहाँ पे कोडिंग कम है. ओके, फिर सबको लगता है कि एसक्यूएल में जाएंगे तो कोडिंग कम करना पड़ेगा, लेकिन जब उनको ये हकीकत नहीं पता है कि उसमें जॉब्स ही नहीं है, तो खामखा गलत प्लानिंग करके उस चक्कर में क्यों रहने का. जब इंक्वायरी करना है तो पता चलता है कि अरे डेटाबेस में तो करियर बन ही नहीं सकता मेरा. हाँ, डेटा साइंस में मेरा करियर बनेगा, लेकिन वो तो एक्सपीरियंस वालों के लिए है. बिग डेटा में मेरा करियर बनेगा, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन में मेरा करियर बनेगा, लेकिन वहां पे तो ऑलरेडी लोग हैं जो काम कर रहे हैं. पहले के जमाने में जब 2010 के पहले की बात करूं मैं, तभी डेटाबेस डेवलपर की रिक्वायरमेंट आती थी अलग से, जैसा डेवलपर टेस्टर का रिक्वायरमेंट आती है आज के डेट में. लेकिन अब तो नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट को जितना डेटाबेस डेवलपर चाहिए था उतना है, वो भी एक्सपीरियंस लोग है. ठीक है, और आपके आपके जमाने के जो डेवलपर्स बाहर निकलते, दे आर फुल स्टैक डेवलपर्स, दे नो डेटाबेस, दे नो एसक्यूएल पीएलएसक्यूएल, दे नो फ्रंट एंड एंड बैक एंड बोथ, तो वो लोग खुद कर लेते, तो अलग से कोई सेपरेट रखता नहीं है. आई होप इट इज क्लियर. द पॉइंट इज कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन में मुझे जाना है सर, तो क्या करूं सर? देन आपको डेवलपमेंट में ही करियर स्टार्ट करना पड़ेगा, और जिस भी कंपनी में काम करोगे वहां पर इंटरनली बात करते करते ना डेटाबेस के टूवर्ड्स आप ना अपनी इंक्लिनेशन दिखाना. आपके प्रोजेक्ट मैनेजर को थोड़ा पटा के रखना कि सर मेरा ना कोडिंग ज्यादा आता है मेरे को, लेकिन उतना करना नहीं है सर, मेरे को कोडिंग कौन करेगा सर, बहुत परेशान हो जाता हूँ. तो हळू हळू करके 2-3 साल में टूवर्ड्स डेटाबेस में तो आप निकल सकते हो. डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोफाइल वगैरह पे तैयारी करके रखना. डीबीए होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. ओके, ओरेकल डीबीए का कोर्स करके प्रिपरेशन करके अच्छे से रखना, सर्टिफिकेशन वगैरह करके 2-3 साल के बाद आप उसमें मूव ऑन हो सकते हो. लेकिन पहला आपको डेवलपमेंट में जॉब करना, जहां पर आपको डेटाबेस से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ काम मिलेगा. ठीक है. नाउ पॉइंट ऑफ सेइंग दिस कि इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ जितने भी मेरे को प्रोफाइल था, उसमें से जाना नहीं है, किसी में भी मुझे काम नहीं करना है, तो व्हाट एल्स आई हैव समथिंग कॉल्ड एज कंप्यूटर सपोर्ट स्पेशलिस्ट. आप सभी ने सुना होगा बैक ऑफिस जॉब, टेक्निकल सपोर्ट जॉब, कॉल सेंटर जॉब. ओके, WNS, विप्रो टेक्निकल सपोर्ट, TCS टेक्निकल सपोर्ट, कैपजेमिनी टेक्निकल सपोर्ट, सुना होगा ना आप सभी ने. Yes sir. तो व्हाट आर दोस वहां पे उस काम के लिए भी तो मैन पावर की रिक्वायरमेंट है ना कंपनीज को. एंड दैट्स द रीजन है ना, इन्फोसिस, बड़े बड़े MNC कंपनी क्या करते हैं. देखिए इन प्रोफाइल में, मुझे आप ये प्रोफाइल जो नाम दिख रहा है सामने आपके स्क्रीन में, ओके, वो देख के मुझे बताओ क्या आप में से कोई भी इसमें जाना चाहेगा? ईमानदारी से बताना है ना, बी जेन्युइन एंड से. क्या कस्टमर सपोर्ट इंजीनियर बनना है आपको? डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर बनना है? डेस्कटॉप सपोर्ट मतलब क्वेरी आएगा, आपको उसको सॉल्व करके देना है. ओके, लॉगिन नहीं हो रहा है सर, मेरा ये एप्लीकेशन में ये प्रॉब्लम है. ओके, मेरा नेटवर्क नहीं चल रहा है, नेटवर्क सपोर्ट दोगे? यू विल नेवर डू दैट. एंड इसी रीजन की वजह से कंपनी आपको जबरदस्ती इसमें पोस्ट कर देता है.
क्योंकि आपको चॉइस दिया जाएगा तो आप तो कभी बोलेंगे नहीं ना कि हाँ सर आई एम रेडी टू बिकम एन डेस्कटॉप सपोर्ट स्पेशलिस्ट. यू विल नेवर से यस फॉर दिस, आई नो दैट. ठीक है, बट अगर ना आपसे कोडिंग जमता है, ना ही आपसे टेस्टिंग होता है, ना ही आपसे डिजाइनिंग होता है, देन फॉर यू this is something is better than nothing. I would rather say this will be the best thing for you. Like that, there is one more, that is network support specialist. Okay, यहाँ पर आपको हार्डवेयर एंड टेक्निकल सपोर्ट्स की नॉलेज लगेंगी, थोड़ा बहुत नेटवर्किंग नॉलेज भी लगेंगी. एंड देन दिस वन हियर विल बी मेनली स्पेशलाइज्ड फॉर समथिंग कॉल्ड एज नेटवर्किंग. ओके, तो हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग का नॉलेज जो आपने कॉलेज में अभी लिया होगा, आई एम श्योर अबाउट इट. आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा होगा, यस और नो? यस सर. आपने कंप्यूटर नेटवर्किंग पढ़ा होगा, लैन मैन वन पढ़ा होगा, टोपोलॉजीज पढ़ा होगा, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, याद है? आपने सर याद. Yes, आपने sir. आपने नेटवर्किंग पढ़ा होगा, सॉकेट प्रोग्रामिंग पढ़ा होगा, वायरलेस नेटवर्क क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, सर्वर क्या होता है, ये सब चीजें पढ़ा होगा आप लोगों ने, करेक्ट? यू नो हाउ कंप्यूटर इंटरेक्ट विद ईच अदर, you know how computer communication happens with each other from one network to another network via internet, xyz stuffs. Now all those knowledges are going to be used in these two areas. One is customer support specialist, other one is network support specialist. तो आप अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़ना नहीं चाहते हैं, डेवलपर, टेस्टर, डिजाइनर नहीं बनना चाहते हैं, then these are the two options you can think of. Okay, इनके डेफिनेशन थोड़ा पढ़ लेते हैं हम. You can read. सपोर्ट स्पेशलिस्ट, कंप्यूटर को सपोर्ट देना है आपको. दूसरा, नेटवर्क को सपोर्ट देना है. ठीक है, तो पहला कंप्यूटर सपोर्ट क्या होता है? कंप्यूटर सपोर्ट स्पेशलिस्ट एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स हेल्प कंप्यूटर यूजर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस. आप किसी कंप्यूटर यूजर को हेल्प करते हैं ताकि उसका कंप्यूटिंग जो नीड है वो फुलफिल कर सको. किसी नेटवर्क है, किसी भी कंपनी का एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है, या फिर कोई वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है. ओके, या फिर सिर्फ प्राइवेट नेटवर्क भी होता है. ठीक है, अलग अलग टाइप के नेटवर्क्स होती है, यू नो दैट. उनको अगर किसी भी तरह का एडमिनिस्ट्रेशन एंड सपोर्ट्स की जरूरत है, यू गाइस विल बी गिविंग दैट इफ यू आर गेटिंग इनटू दिस करियर. सो व्हाट डू दे डू बेसिकली, क्या करते हैं इसके लिए, इस सपोर्ट में एंड इस एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के लिए क्या करते हैं? दिस सपोर्ट कंप्यूटर नेटवर्क्स बाय टेस्टिंग एंड इवैल्यूएटिंग नेटवर्क सिस्टम्स एंड एंश्योरिंग दैट द डे टू डे ऑपरेशन वर्क्स आर हैपनिंग स्मूथली. अदर्स प्रोवाइड्स, मतलब जो कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, दे हेल्प पीपल, ओके, विद देयर कंप्यूटर प्रॉब्लम्स. गेटिंग इनटू दिस करियर यू रिक्वायर डिग्री. ओके, इफ यू वांट टू गेट इनटू अ वेरी बिग कंपनी, गुड कंपनी, ओके, तो आपको डिग्री की जरूरत है. डिग्री नहीं है फिर भी इस फील्ड में आपको जॉब करना है, इस प्रोफाइल में जॉब करना है, मिल जाएगा. ठीक है, while others needs an associate degree or a post secondary classes. 12th के बाद कोई हार्डवेयर नेटवर्किंग का कोर्स कर लिया, ओके, A+N+ लिनक्स का कोर्स कर लिया, या फिर माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन कर लिया, या फिर सिस्को का सर्टिफिकेशन कर लिया, CCNA वगैरह. यही 3 ऑप्शन है मार्केट में. आप सभी को आप सभी को पता होगा, राइट? हार्डवेयर नेटवर्किंग पता होगा. So can you repeat again? I said A+N+ hardware and networking plus. Okay, then you have something called as Linux administration, then you have Microsoft certification, MCITP, then you have something called as CCNA, Cisco Certified Network Associate. ये शुरुआती लेवल के कोर्सेस है. अकॉर्डिंगली फिर आगे नेक्स्ट लेवल के कोर्सेस आप कर पाएंगे. ठीक है, समझा अभी? Yes guys, you got it? Yes, sir. Yes. So what I'm saying is you have a choice in case you are finding difficult to get into other engineering options, software engineering options like development, testing, designing, and other things. Okay, it is not समथिंग कि इसमें चले जाएंगे तो आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं होगा, ऐसा नहीं है. यहाँ पे भी ग्रोथ है बट बहुत लिमिटेड है. 100 में से शायद
5 लोगों को ग्रोथ मिलता है, बाकी 95 लोगों को सैचुरेशन में ही काम करना पड़ता है, बहुत ज्यादा सैलरी नहीं मिलता है, बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं मिलता है। लेकिन एक आधे ऐसे बंदे होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे पहुंच जाते हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन में पहुंच जाते हैं, दे अर्न lakhs of rupees पर मंथ। गूगल का नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का पैकेज पता है कितना है? मंथली पैकेज। गूगल जो है, गूगल इंडिया वाला जो बंदा है, ये उसका मंथली पैकेज पता है? नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर गूगल का समझे कुछ 5 लाख पर मंथ का कुछ है, तो दैट गोज अप टू अराउंड 60 lakhs per annum. This is, I don't remember which month and which year I have seen it. Okay, it may be more now. Okay, but this is the minimum salary I remember. Okay, anyways, so any question guys here on these 2 slides? नेटवर्क इंजीनियर जो होते हैं, जो नेटवर्क स्पेशलिस्ट होते हैं, they define a network, they design the network, they build the network and they maintain the variety of data communication using the network and system. Okay, जैसे कि आप ये स्क्रीन पे देख सकते हो, एक इमेज मैंने डाला है। These images are been sourced from Google, so it is only used for knowledge purpose, so do not copyright, do not give us any strike on this. Okay, so guys, you can see in the screen, this is what is a network switch, networking switch is concerned. इन स्विच में बहुत सारे वायर्स कनेक्टेड है, RJ45 कनेक्टर है, नेटवर्क केबल्स है, इसके थ्रू आप ना नेटवर्क, डेटा सेंटर्स, इंफॉर्मेशन सब कुछ आप ना स्टोर करते हैं, बिल्ड करते हैं, मेंटेन करते हैं, इसको संभालते हैं। ठीक है गाइस, इज दैट क्लियर? Here at this stage I am stopping for some time. I would like to attend some questions here, because ये है वो मिनिमम करियर ऑप्शंस जो आपको एज एन फ्रेशर देखना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम द ट्रेंडिंग जॉब्स, जो कि ये है। Any questions on the previous slides? I will repeat, I'll conclude it. सर Yes, please. सर अभी आपने जो स्लाइड्स में दिखाया वो कि डेटा एनालिस्ट में क्या क्या चांसेस है? Okay, now this slide you are talking about, right? यस, डेटा एनालिस्ट, अबाउट डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट में एज एन फ्रेशर चांसेस आर 0.1%. I am giving you an challenge, prove me wrong. For a fresher, getting into data science job is 0.1%. I'm not saying 0, I'm giving only 0.1%, not even 1%. Okay, because in data science what happens, you know, the job is a very responsible job. It's a volume wise bigger volume job. Okay, इसमें होता क्या है कि like you are responsible for, you know, generating certain reports and analyze the data, okay, which your company is dealing with. उन डेटा के ऊपर रिपोर्ट्स बनाना है, साइंटिफिक रिपोर्ट बनाना है, मैथमेटिकल रिपोर्ट्स बनानी है, किसी भी तरह का। जैसे कोविड वाला जो रिपोर्ट्स बनते हैं डेली बेसिस पे अपडेट होता है, वो रिपोर्ट अगर गलत निकलेगा तो उसका इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ेगा? इम्पैक्ट आपको उसको कंपनी को पड़ेगा और उस क्लाइंट्स को पड़ेगा, उस यूजर्स को पड़ेगा जो इस पे रिलाई करते हैं, डिपेंडेंट है, वो यूजिंग इट। ओके, एंड डेटा साइंस जो करियर है, इसमें जाने के लिए डोमेन एक्सपर्टीज भी चाहिए होता है। मान लो आप बैंकिंग इंडस्ट्री में किसी बैंक में एज अ डेटा साइंटिस्ट का जॉब करने जा रहे हो, ओके, बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। आपको बस इतना पता है सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है। सेविंग अकाउंट मतलब होता है जो हम लोग अकाउंट ओपन करते हैं, मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है वगैरह वगैरह, 4% उसका सेविंग रेट वगैरह होता है वगैरह, इतना ही पता, आगे के कुछ नहीं पता है। बैंकिंग सर्विसेज नहीं पता है, इस बैंकिंग के चैलेंजेस नहीं पता है, बैंकिंग डेटा का यूजेस नहीं पता है। ओके, गवर्नमेंट लॉज क्या होता है वो डेटा से जुड़ा हुआ है, उस बैंकिंग सर्विसेज से कुछ नहीं मालूम है, तो कैसे डेटा साइंटिस्ट बनोगे उसमें? लाइक दैट एट द मोमेंट डेटा साइंस इज ए वेरी न्यू करियर, बिकॉज 3 साल पहले डेटा साइंस की वैकेंसीज ऐसा ओपनली कोई बात नहीं करता था, अब मिलना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, मिलना स्टार्ट हुआ है, लोग इसमें जाएंगे, जो एक्सपीरियंस लोग हैं उसमें काम करेंगे, चीजें स्टेबल होगी कुछ सालों में, उसके बाद फिर इसमें वैकेंसीज बढ़ेगी। सो राइट नाउ if anybody is telling you that go and become a data scientist, then that should be your decision and it will be your own risk. I am not advising you to do that. ठीक है, पहले भी सेशन के कम्युनिकेशन स्टार्टिंग में मैंने बोला, अब भी मैं बोल रहा हूँ, सीखना है क्या होता है डेटा साइंस, बिकॉज कॉलेज के सिलेबस में नहीं है, तो आप सीख सकते हो।
You join a program, you learn it so that you can identify or you can find out कि कल को जाके 2 साल बाद मुझे डेटा साइंस में करियर बनाना है नहीं बनाना, वो आइडेंटिफाई करने के लिए बस आप सीख सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेरी. So graphic designing क्या है? ग्राफिक डिजाइनिंग इज नथिंग बट क्रिएटिव्स डिजाइंस. ओके. अलग अलग तरीके के जो आप सोशल मीडिया में या फिर किसी वेबसाइट्स में देखते हैं आप. ओके. जो ग्राफिक्स होते हैं, ग्राफिक्स मींस लेट्स से अभी जो हमने आज का जो डिजाइन बनाया था, ओके, फर्स्ट स्लाइड में, व्हाट इज इट? दिस इज अ ग्राफिक. ओके. हम इसको डिजाइन बोलते हैं हमारी नॉर्मल यूजर की लैंग्वेज में, लेकिन इसमें ग्राफिक्स है. ठीक है. यूजिंग फोटोशॉप like applications, you will be designing some graphics, you will be designing some contents, in short you can say. डिजाइनिंग पार्ट को आप ना ग्राफिक्स में लेके जा सकते हो. अब वेब ग्राफिक्स एक पार्ट होता है, देन नॉर्मल ग्राफिक्स एक पार्ट होता है. इन शॉर्ट योर करियर विल बी इन डिजाइनिंग ऑफ कंटेंट्स. आप ये फोटोशॉप वगैरह सीख लो. ठीक है. फिर आप ग्राफिक डिजाइनर बन जाओ. समझ में आया? Yes, sir. So what about machine learning? Okay, machine learning and AI. Machine learning AI is also in the initial phase of their career options. वैसे ये टेक्नोलॉजीज तो काफी सालों से इंडस्ट्री में, जब से रोबोटिक्स आया तब से मशीन लर्निंग AI मार्केट में है. ठीक है. बट जॉब्स मिलना कब से स्टार्ट हुआ? अगेन 3-4 साल पहले मिलना स्टार्ट हुआ. ठीक है. नाउ कंपनीज लाइक गूगल, फेसबुक, यू नो, ऑल दीज, लिंक्डइन, ओके, देन नेटफ्लिक्स, ये सारे कंपनीज क्या यूज कर रही है? जितने भी IT स्पेसिफिक कंपनीज है और IT सर्विस ओरिएंटेड कंपनीज है, ओके, वो लोग क्या कर रही है? अपने एप्लीकेशन को, अपने सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए, इंटेलिजेंट बनाने के लिए AI एंड मशीन लर्निंग इस्तेमाल कर रहे हैं. ठीक है. तो नाउ ऑल दिस बिग कंपनीज एक्चुअली हैव जॉब वैकेंसीज इन दिस. तो इसमें अगर मुझे जाना है, देन आई हैव टू आल्सो सी द पॉसिबिलिटीज. ठीक है. मशीन लर्निंग AI तो मैं सीख लूंगा बिकॉज ये टेक्निकल है. ओके. मेरे को कॉलेज में प्रोग्रामिंग सिखाया गया, मुझे कॉलेज में मैंने सारा चीज सीखा जो इससे जुड़ा हुआ है. ठीक है. So what I can do, I can learn it. But again, when it comes to job, again I'll be in a situation where will I get a job? Which company will going to hire me? कौन सी कंपनी में जाऊं? मान लीजिए आपने परसेंटेज कम स्कोर किया, 60% से कम है आपका 12th में या फिर 10th में या फिर डिग्री में, फिर मशीन लर्निंग करके क्यों आप अपना लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हो? ठीक है. मशीन लर्निंग तो छोटे मोटे कंपनी में होगा ही नहीं, और बड़े कंपनी में जाने के लिए क्राइटेरिया आ जाता है हमेशा फ्रेशर्स के लिए. ठीक है. ना हेड आपका होगा ना टेल आपका होगा, लॉस आपका ही होगा. ठीक है. मशीन लर्निंग AI में आपको आगे पढ़ना है, सीखना है, तो आपको पाइथन एज एन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको बेस बनाना पड़ेगा. ठीक है. बिकॉज पाइथन इज द मोस्ट सक्सेसफुल लैंग्वेज इन दिस एरिया. मशीन लर्निंग में, डेटा साइंस में, IoT में, AI में, NLP में, डीप लर्निंग में, इन सारी चीजों में पाइथन सबसे ज्यादा यूज होता है बिकॉज वो आसान है. ठीक है. बट जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो तो 2021 में आपको मैं रेकमेंड नहीं कर सकता. ठीक है. आई एम एन कंसल्टेंट, करियर कंसल्टेंट, तो मैं आपको गलत कंसल्टिंग नहीं दे सकता. ठीक है. सेम गोज विद ब्लॉकचेन डेवलपमेंट. दीज आर ऑल नीश स्पेशलाइजेशंस. यहाँ पे सिर्फ स्पेशलाइज तरीके से ही जाना पड़ेगा. ठीक है. यस, एब्सोल्युटली यू आर स्पेशल. ओके. बट आपके एजुकेशन बैकग्राउंड देखो. ओके. आपका ईयर ऑफ पास आउट देखो, फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, वो भी देखो. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेरी. Yes, sir, absolutely. सर ऐसे कौन सी कंपनी है जहाँ फ्रेशर्स को ज्यादा मतलब चांस देते हैं? कौन से प्रोफाइल में? सॉफ्टवेयर टेस्टर, कंप्यूटर सपोर्ट स्पेशलिस्ट. हर कंपनी में. क्योंकि WNS ले लो, विप्रो ले लो, ग्लोबल सोर्स ले लो, ओके, 3i इन्फोटेक ले लो, वाशी में है यहाँ पे. देन यू हैव एवरी MNC कंपनी में आपको मिल जाएंगे फॉर श्योर. MNC कंपनीज तो है इनमें से. ओके. आपको ये जो एरिया है ना, इसमें बहुत पैसा है कंपनीज पर्सपेक्टिव से सपोर्ट करने के लिए. देन BPOs इंडस्ट्री हो गया, KPOs इंडस्ट्री हो गया, हर कंपनी में होता है इसकी रिक्वायरमेंट. अच्छे कंपनी में होती है, सैलरी भी अच्छा खासा मिलता है, लेकिन द जॉब, द काइंड ऑफ जॉब जो होता है ना, कि क्वालिटी ऑफ जॉब, व्हाट आई एम डूइंग, आई शुड एंजॉय दैट एज वेल, राइट? टिकट्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करते रहो. मतलब कोई बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे आप, कि क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है, उसके पास प्रॉब्लम है एक बहुत बड़ा, और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए द क्लाइंट वांट अ सॉफ्टवेयर. तो फिर वो सॉफ्टवेयर क्या होता है, बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट हो जाता है.
प्रोजेक्ट को बनाया तो आपको एक सेटिस्फेक्शन आता है कि हमने TCS ने ये प्रोजेक्ट बनाया या फिर मेरे कंपनी ने, और मैंने इस प्रोजेक्ट में काम किया, जो प्रोजेक्ट ये कंपनी इस्तेमाल कर रही है वो कंपनी इस्तेमाल कर रही है, ठीक है। वो एक सेटिस्फेक्शन अलग लेवल का होता है। जबकि रोजमर्रा की जिंदगी का प्रॉब्लम सॉल्व करने से आपको एक छोटा छोटा खुशियां मिलेगी, आपको एक बड़ा कोई प्राइड नहीं मिलेगा। मतलब एनीबडी कैन डू दैट जॉब, राइट। सो कॉमन हो जाता है फिर उसके लिए। आपको फिर बोर हो जाएगा कुछ साल के बाद। आपको वो काम में मजा लाने के लिए अलग अलग चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। जरूरत से ज्यादा कॉफी पीने पड़ेगी, चाय पीने पड़ेगी, उसके आगे भी बहुत कुछ करते हैं लोग, तो आप समझ जाओ, ठीक है। आई कैन से दिस इन दिस मीटिंग, ओके। सो दोज आर लाइक ओनली व्हेन यू डोंट हैव एनीथिंग इन योर हैंड, तब उसमें जाइए। नेटवर्किंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। डेस्कटॉप सपोर्ट, कंप्यूटर सपोर्ट, नेटवर्क सपोर्ट। नेटवर्किंग जो होता है वो अलग होती है, एडमिनिस्ट्रेशन अलग होता है, ओके। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। सर, या आपने अभी कहा कि हर चीज में स्पेशलाइज होना चाहिए, अभी द मशीन लर्निंग में भी और ब्लॉकचेन डेवलपर्स में भी। तो हम लोग के लिए, फ्रेशर्स के लिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि हम लोग स्पेशलाइज तो नहीं है कि हम लोग अर्न कर सकते हैं जॉब और को मनी, हम लोग को okay, वैसा कुछ? very simple answer. You have to do a specialization either in development or in testing, okay, or in designing. ये 3 एरियाज है जहां पर आपको स्पेशलाइजेशंस लेने पड़ेंगे, बिकॉज उसी में आपको जॉब मिलेगा। डेटा साइंस में जाना है ना आपको, मशीन लर्निंग में जाना है ना, तो 2 साल बाद डेटा जाओ, एनालिस्ट। ठीक है। डेटा एनालिस्ट में जाना है ना, 2 साल बाद जाओगे ना, कौन रोका है आपको। आप अभी फिलहाल जॉब कर लीजिए, टेस्टिंग में कर लो, या फिर आप डेवलपमेंट में कर लो, ठीक है। बिकॉज एनालिस्ट में जाना है तो थोड़ा टेक्निकल एबिलिटीज रहना चाहिए आपके अंदर, इसलिए डेवलपमेंट या फिर टेस्टिंग में काम कर लो फिलहाल 2 साल 3 साल के लिए। बाद में आप डेटा साइंस के कोर्स करो या फिर डेटा एनालिसिस के कोर्स करो। बिजनेस एनालिस्ट भी एक ऑप्शन होता है, बिजनेस इंटेलिजेंस भी एक ऑप्शन होता है, SAP भी एक ऑप्शन होता है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस आप आगे जाके करके आप इंडस्ट्री में जंप कर सकते हो। आई मीन व्हाट डू यू कॉल इट दैट, आप करियर स्विच ले सकते हो, ट्रांजिशन ले सकते हो, बट नॉट नाउ। बट इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द स्विच करियर के एग्जांपल जो मैंने दिया था, जावा डेवलपमेंट में काम कर रहे हो और .NET डेवलपमेंट में स्विच करना है, वो मुश्किल होगा। लेकिन डेवलपमेंट से टेस्टिंग में जाना, डेवलपमेंट से डिजाइनिंग में जाना, डेवलपमेंट से डेटा साइंस में जाना, डेवलपमेंट से मशीन लर्निंग AI में जाना, वो पॉसिबल है, ठीक है। बेसिक करियर में हो, मैं अगर बेसिक एंड एडवांस कंपैरिजन में करूँ, बेसिकली आपको क्या जॉब मिलती है, डेवलपर टेस्टिंग मिलता है, ये बेसिक करियर हो गया आपके लिए। डेटा साइंस मशीन लर्निंग AI तो ये क्या है, एडवांस करियर है, आपको मिल नहीं रहा अभी, तो बेसिक से इंसान एडवांस में जाता है ना। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो कल को जाके 2 साल 3 साल के बाद आप डेटा साइंस में, मशीन लर्निंग में आप स्विच करो, बट नॉट नाउ। फिलहाल आपको अपनी प्रेजेंट को सेफ रखना है, ठीक है। प्रेजेंस में आपको ये डेवलपमेंट टेस्टिंग आपको बचाएगा, डिजाइनिंग के जॉब्स या फिर सपोर्ट इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियरिंग का जॉब्स आपको बचाएंगे। And sir, what about the duration of that courses, desktop and networking? हार्डली 4 to 6 months के होते हैं ऑन हायर एंड, किसी भी जगह से करेंगे ना। 4 to 6, देखिए जितने भी स्पेशलाइजेशन कोर्सेज होते हैं ना, अपार्ट फ्रॉम योर डिग्री, जब आप कोई कोर्स करना चाहते हैं मार्केट में, 4 to 6 months के ड्यूरेशन के होते हैं मैक्स टू मैक्स, ओके। दैट डिपेंड्स ऑन द कंपनी और इंस्टीट्यूट कि वो 5 महीने के कोर्स को 10 महीने में खत्म करते होंगे, 4 महीने के कोर्स को 8 महीने में खत्म करते होंगे। वो आपको चेक करना पड़ेगा कौन से इंस्टीट्यूट में आप कोर्स करने जा रहे हो, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू डेटा साइंस एंड ऑल, उसमें भी 2-3 लेवल के कोर्सेस होते हैं। In fact, I'll just guide you on this part also, because I'm sure 70% of you will be definitely doing a course in future. कुछ ना कुछ कोर्स करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा जॉब के लिए। तो जब कोर्स करने की बारी आएगी तो तब कौन से पैरामीटर्स पे आपको ध्यान देनी पड़ेगी। नंबर 1 पैरामीटर इज कि हाउ मच टेक्निकल स्किल्स आई विल बी गेटिंग आउट ऑफ द प्रोग्राम। नंबर 1 इज दैट, बिकॉज टेक्निकल एबिलिटी इज ब्रेड एंड बटर फॉर यू, और फंक्शनल जो भी बोलो वही नहीं आता। टेक्निकल एंड फंक्शनल नॉलेज नहीं है तो सिलेक्शन होने के बाद काम करोगे तो कैसे करोगे, है ना। तो उसकी पहला पैरामीटर आपको चेक करना पड़ेगा। टेक्निकल स्किल्स डेप्थ में सिखाने के लिए अगर इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि हम लोगों को मार्केट में 4 महीने के कोर्स होता है, हम लोग 5 महीने में आपको पढ़ाएंगे, कोई बात नहीं, आप वो कोर्स उनसे ले लो क्योंकि वो डेप्थ में पढ़ाने वाले। नंबर टू उनको ये चेक करना है आपको कि वो टेक्निकल एबिलिटीज के साथ साथ अदर स्किल सेट्स क्या क्या देने वाले हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन एनहांसमेंट कराएंगे क्या, लॉजिक बिल्डिंग कराएंगे क्या, एप्टीट्यूड सिखाएंगे क्या, ठीक है। देन विल दे सपोर्ट यू इन प्लेसमेंट्स,
ओके, ओवरऑल इंटरव्यू प्रिपरेशन कराएंगे क्या, वो कराएंगे तो सिर्फ बोल के नहीं होना चाहिए, पास्ट रिकॉर्ड होना चाहिए और उनके पास वो मैकेनिज्म होना चाहिए कि वो करवाते हैं करके। तो ये दूसरा पॉइंट आपको चेक करना है। तीसरा पॉइंट आपको ये चेक करना है कि मोड ऑफ ट्रेनिंग क्या होने वाला है। तो इट विल बी ऑनलाइन। ऑनलाइन में दो ऑप्शंस होते हैं। ऑनलाइन में एक वीडियो कोर्स होता है, जैसे कि यूडेमी, यूट्यूब वगैरह हो गया, कोर्सेरा वगैरह, जहाँ पर वीडियो कोर्स होता है, आपको खुद के हिसाब से सीखना पड़ता है, सेल्फ पेस के हिसाब से। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, लाइव क्लासरूम ट्रेनिंग होता है। ठीक है, ऑनलाइन में लाइव क्लासरूम ट्रेनिंग होता है। दैट इज बैच पढ़ा, जैसे कि अभी हम लोग कनेक्टेड है ऑनलाइन, वैसे ही ऑनलाइन ट्रेनिंग होता है लाइव में। ठीक है, विच इज बेटर देन द वीडियो कोर्स। देन ऑनलाइन लाइव क्लासरूम ट्रेनिंग से बेटर क्या होता है, क्लासरूम ट्रेनिंग। ठीक है, जिसमें आप इंस्टीट्यूट में जाएंगे, उस क्लासरूम में बैठेंगे, लैब में बैठेंगे, आपको वहां पे पढ़ाया जाएगा। तो दीज आर द 3 वर्जन्स ऑफ मोड ऑफ ट्रेनिंग। ऑनलाइन वीडियो कोर्सेज जो सेल्फ पेस के हिसाब से होता है, नंबर 2 इज ऑनलाइन लाइव क्लासरूम कोर्सेज, एंड नंबर 3 इज ऑफलाइन क्लासरूम ट्रेनिंग। सबसे बेहतर है ऑफलाइन क्लासरूम ट्रेनिंग, इससे थोड़ा इस हिसाब से देखेंगे तो ऑनलाइन लाइव ट्रेनिंग, एंड देन सबसे घटिया जो होता है मैं बोलूँ वो होता है वीडियो कोर्सेज। वीडियो कोर्सेज आप सोच समझ के कभी भी करना, भले ही वो चीप होता है, मतलब कॉस्ट उसका बहुत सस्ते में होता है, आप कभी भी ऐसे कोर्सेज मत करो, आप खुद को कंफ्यूजन में डाल दोगे। यूडेमी में 200 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये में कोर्स मिलता है, वो करो, फिर बाद में आप कंफ्यूजन में आ जाते हो। ये जो मेरे को सिखाया गया वीडियो में, वो मैं इम्प्लीमेंट कहाँ पे करूँ। और जो वीडियो मैंने बनाया था, जिस भी वीडियो कोर्स मैंने परचेस किया, वो 2017 में बनाया था उसने, हमें 2021 में उसको पढ़ा, तो रिलेवेंसीज नहीं दिखता है। तो नेवर एवर गो फॉर एनी वीडियो कोर्सेज, जाते भी हो तो वो लेटेस्ट वाला वीडियो कोर्स होना चाहिए, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। फिर आता है ऑनलाइन ट्रेनिंग। ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड ऑफलाइन ट्रेनिंग में कंपैरिजन कर लो। ऑनलाइन ट्रेनिंग सस्ता रहेगा, ऑफलाइन ट्रेनिंग महंगा रहेगा। ऑनलाइन ट्रेनिंग अगर मान लो 10,000 रुपीज की है कोई प्रोडक्ट, ऑफलाइन में उसका डबल रह सकता है, 20,000 हो सकता है, 30 हो सकता है, डिपेंड करता है, बिकॉज ऑफलाइन में बहुत सारे कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, सो बी केयरफुल अबाउट ऑल दिस थिंग्स व्हेनेवर इन फ्यूचर यू विल बी गोइंग फॉर ए प्रोग्राम, ओके, ऑफ योर चॉइस। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। एक और चीज है, आप पीएससी कंप्यूटर साइंस एंड आईटी के बाद आप अगर मास्टर्स करने जा रहे हो, well and good, okay, if your family is supporting you, if they are giving you additional time of 2 to 3 years more and financial support, आप मास्टर्स कर लेना जरूर, बिकॉज एक बार जॉब पे लगे उसके बाद मौका नहीं मिलता है मोस्ट ऑफ द लोगों को। ठीक है, अगर आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है, गो फॉर मास्टर्स, डू इट फ्रॉम योर सेम कॉलेज, जिस कॉलेज में फिलहाल हो। आपके कॉलेज में अगर एमएससी है, एमएससी आईटी कंप्यूटर साइंस या फिर एमसीए वगैरह कुछ भी है, तो कुछ भी कर सकते हो, जस्ट मास्टर चाहिए। एमएससी आईटी कंप्यूटर साइंस फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, there are colleges who will tell you कि मतलब कि एमसीए करना, क्योंकि उनके पास एमसीए होंगे, या फिर they want you to do एमसीए, like that they will do। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है, डिफरेंस नहीं होता है। आप एमएससी आईटी कंप्यूटर साइंस, एमसीए या फिर एमएस भी कर सकते हो फॉरेन कंट्रीज में जाके। ऑफ कोर्स एमएस में फर्क होगा, डिफरेंस होगा, दैट विल बी मोर वैल्यूएबल। ओके, कौन से यूनिवर्सिटी से करोगे, कौन से कंट्री में जाके करोगे, वो भी मैटर करता है। आजकल तो ऑनलाइन का ट्रेंड आ चुका है, ऑनलाइन में फॉरेन कंट्रीज की एजुकेशन भी आप यहीं इंडिया में बैठे बैठे ले सकते हो। ठीक है, डेटा साइंस के ऊपर, मशीन लर्निंग के ऊपर 1 ईयर का प्रोग्राम होता है, 3 लाख 4 लाख का कोर्स फीस होता है। ओके, तो वो सारी चीजें आप जब कमा के थोड़ा सेविंग करोगे तब वो करना। ठीक है, फिलहाल अभी ऑलरेडी आपके पैसे बहुत खर्च हो चुके हैं, 1 लाख 2 लाख रुपीज तक खर्च हो चुके रहेंगे आपके एजुकेशन में। ऑन टॉप ऑफ दैट आप फिर से 2 लाख 3 लाख रुपए मांगोगे 6 महीने 1 साल के कोर्स के लिए फैमिली से, फैमिली वाले पहले मना कर देंगे, और उनको करना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें अभी जाना रिस्की है। ठीक है, ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। I hope I'm audible. Yes. So what is the next question? Anybody is having a next question? Yeah, somebody saying something. Okay, in the time you frame some questions for me, I would like to go to the next slides. Okay, I want to show you some salary packages of these trending jobs. Okay, ये है लालच आपके लिए कि अगर आप डेटा साइंटिस्ट में जाना चाहते हो, देखो कितना सैलरी मिलता है। ठीक है, अराउंड एज लो एज, मतलब कम से कम 3.5 लाख का पैकेज मिलता है डेटा साइंस में, फ्रेशर्स। अगर आप देखेंगे, अभी मैं फ्रेशर्स की बात कर रहा हूँ। फ्रेशर कौन से वाले फ्रेशर्स? आईआईटी बॉम्बे, ओके, ट्रिपल आईटी बैंगलोर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज,
ऑटोनॉमस कॉलेजेस, बड़े बड़े एकदम बहुत बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, वहां से कुछ कंपनियां लाइक गूगल, IBM, इन्फोसिस, TCS, ओके, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, बड़े बड़े कंपनियां जाके हायर करती है, ठीक है। एंड बहुत कम रेशियो होता है फ्रेशर्स की हायरिंग, दैट इज अराउंड 5% आउट ऑफ द 100% जॉब्स विच इज अवेलेबल इन डेटा साइंस एंड अदर थिंग्स, एडवांस ऑप्शन 5%। लेकिन वो भी कहाँ से हायर होती है? बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से, यूनिवर्सिटीज से, ठीक है। इसीलिए आपको मैं मना कर रहा था कि एज एन फ्रेशर अभी आप ट्राई मत करो, एक्सपीरियंस लेके 95% चांस आपके लिए रहेगा कि अगर एक्सपीरियंस के बाद आप कोर्स करते हो डेटा साइंस वगैरह का, तैयारी करते हो, तो आपको पक्का जॉब मिलेगा। बट नाउ इट इज वेरी रेयर, ठीक है। ये सैलरी कुछ जो दिख रहा है आपको, ये डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स की सैलरी है। आप में से बहुत कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिन्होंने शायद कॉलेज में जो फेस्ट वगैरह होता है, कॉलेज की जो फेस्टिवल्स होती है, जिसमें आप लोग कमिटी में मेंबर बनते हो, आप फिर अलग अलग कंपनीज को अप्रोच करते हो स्पॉन्सरशिप के लिए, तो आप लोग जो है ना, आपके अंदर एक मार्केटिंग क्वालिटी है, ठीक है। यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। आप उस स्किल्स के बेसिस पे भी आप अपना करियर डिजिटल मार्केटिंग में बना सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग में आपके टेक्निकल स्किल्स यूज होगा, जो वेब टेक्नोलॉजीज की नॉलेज आपकी है, HTML, CSS, jQuery, जावास्क्रिप्ट, ये नॉलेज आपका यूज होगा डिजिटल मार्केटिंग में फॉर डिजाइनिंग वेबसाइट एंड डेवलपमेंट। नंबर 2, आप कुछ मार्केटिंग ऑटोमेशन करना चाहते हो डिजिटल प्लेटफॉर्म में, उसमें इस्तेमाल होगा आपका नॉलेज। प्लस अगर आपका एज ए पर्सनल क्वालिटी, लाइफ स्किल क्वालिटी की यू आर ए गुड कम्युनिकेटर, यू आर ए पर्सन हु कैन प्रेजेंट वेल, ओके, तो आप डिजिटल मार्केटिंग को आप अपना करियर बना सकते हो। सैलरी इसमें मिनिमम टू मिनिमम 10,000 रुपीज से लेकर 30,000 रुपीज पर मंथ मिल जाता है, ठीक है। बड़े बड़े कंपनीज की सैलरी आपको सामने दिख रहा होगा। दिस आर द सैलरी पैकेजेस ऑफ फ्लिपकार्ट, वोडाफोन, अमेजॉन, एयरटेल, गोदरेज, IBM, इन कंपनीज की सैलरी पैकेज देखो। ऑन एवरेज जो साल भर का सैलरी होता है इनका लगभग 10 लाख 15 लाख की सैलरी पैकेजेस होता है, ठीक है। तो वहां पे पहुंचने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा? 4 साल से 5 साल लगेंगे, बिकॉज आपको जो स्क्रीन में दिख रहा है, दिस आर मार्केटिंग मैनेजर की पैकेजेस, ठीक है। फ्रेशर सैलरी जो होता है वो भी ऑलमोस्ट 10 से 30 हजार के रेंज में होता है। दैट मीन्स 1.2 से लेकर 3.5-4 लाख रुपीज तक होता है, लाइक ए डेवलपर टेस्टर ओनली। तो ये ऑप्शन में भी आप जा सकते हो। फिर बात करते हैं हम मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट की। इसमें भी आपको मिनिमम टू मिनिमम 15,000 से सैलरी लेकर अराउंड 40,000 रुपीज तक की सैलरी मिल जाएगी, ओके। अगेन यहाँ पर भी बड़े बड़े कंपनीज में ही वैकेंसी मिलेंगी, छोटे कंपनी में है ही नहीं, ठीक है। सो बी केयरफुल अबाउट दैट पार्ट। देन यू हैव ब्लॉकचेन डेवलपमेंट। ब्लॉकचेन डेवलपमेंट बहुत लिमिटेड कंपनीज है इसमें। इसमें भी सैलरी जो मिलती है वो लगभग 20,000 से स्टार्ट होती है एंड इट गोज अप टू समवेयर अराउंड 5 लाख 6 लाख रुपए फ्रेशर्स से, ठीक है। क्योंकि बहुत निश है, बहुत स्पेशलाइज्ड है। इसमें जाने के लिए आपको हार्डवेयर नेटवर्किंग से आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, फिर नेटवर्किंग कंसेप्ट्स को डिटेल में सीखना पड़ेगा, फिर आपको प्रोग्रामिंग सीखना पड़ेगा। लाइक दैट देयर आर सो मेनी स्टडीज यू आर सपोज्ड टू डू। आप ऑलरेडी TY में आ चुके हो, आपके पास टाइम कम है, तो इसमें जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसको आप फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से रखना, लेकिन उसमें जाने का प्लान अगर आप करते हो तो फिलहाल आप नेटवर्किंग वाले जॉब्स में टारगेट करना, अगर ब्लॉकचेन में जाना चाहते हो तो, या फिर डेवलपमेंट वाले जॉब में टारगेट करना। ये दोनों एरिया से आप वहां पे पहुंच सकते हो। क्लियर? देन दीज आर फुल स्टैक डेवलपर्स, दैट मींस सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। जावा, .NET, PHP, पाइथन, किसी भी टेक्नोलॉजी को चूज करो, बट मेरा रिकमेंडेशन रहेगा गो विथ जावा, .NEट एंड पाइथन। PHP में अगर आप रियली इंटरेस्टेड रहोगे तो ही जाना, अदरवाइज उसमें सैलरी ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। लुक एट द सैलरी पैकेजेस ऑफ फुल स्टैक डेवलपर्स। फुल स्टैक डेवलपर्स यूजुअली टेक अराउंड 3 years टू बिकम ए फुल स्टैक डेवलपर, बिकॉज नॉलेज तो लेके जाना पड़ेगा फुल स्टैक का, क्लाइंट साइड भी सीखना पड़ेगा, सर्वर साइड भी सीखना पड़ेगा। लेकिन जॉब जब आपको मिलेगा एज एन फ्रेशर, जूनियर, आप मॉड्यूल्स वगैरह में काम करेंगे, पूरा फ्रंट एंड बैक एंड में काम नहीं करेंगे। 2-3 साल के बाद आप फुल स्टैक डेवलपर बनेंगे, ठीक है। करियर है ना ये। तो जैसे ही आप 2-3 साल में लेवल पे पहुंच जाएंगे, आपके सैलरी पैकेजेस जो रहेंगी मिनिमम 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रुपीज का सैलरी पैकेजेस रहेगा, ठीक है। कंपनीज लाइक TCS, IBM, एक्सेंचर, ये सारे कंपनीज में आपको इस तरीके के सैलरी पैकेजेस मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, these are the salary packages I have sourced from LinkedIn. You can also cross verify in your free time, ठीक है। Software testers, like you can see there are so many software testing profiles on the screen. One is software testers, other one is QA analyst, software tester, QA testers, software quality assurance testers, software test engineers,
सैलरी पैकेजेस जो होती है वो भी लगभग अराउंड 12,000 से स्टार्ट होती है एंड इट गोज अप टू समवेयर अराउंड फ्रेशर सैलरी पैकेज की बात करूँ तो इट गोज अप टू अराउंड 3 लाख 4 लाख रुपीज का सैलरी पैकेज. ठीक है. So these are all salary packages based on the profiles, and that's all from my end. Now I would like to attend few more questions before ending the session. I would like to spend 5 more minutes with you guys in case you have any questions, or else we will wind up here. This is my contact detail, and you can follow Squad Infotech from any of these platforms. Preferably follow us on our YouTube platform, Instagram, LinkedIn, and Facebook. I would rather say follow us on every platform. How does it matter for you? It's just a matter of one click. Subscribe, follow, and like us. Questions from you guys? Let me just quickly check, and there will be feedback link will be shared by madam on the chat box. Just fill up the feedback form. Okay, there is a question from Eliza. I hope this is your name, or Charmaine will be your first name, whatever it is. Excuse me for that. Is MSc CS and MCA different, and what does IT company prefer to hire between these two? I have already answered these questions in my previous communication. There is no difference at all. It is just a difference of education. You are doing MCA, you will be called as an MCA graduate. You are doing MCA master. You are doing MSc computer science, be considered as an MSc computer science graduate and master. Ultimately, you will be working in industry as a developer, tester, XYZ profiles. So how does it matter what education background you have once you get a job? Getting a job in the industry as a developer, tester, minimum requirement is graduation, which you have already. In case your family supports, go for masters. Otherwise, don't go for it, because it is going to take another 2 years, 3 years for you to complete the masters, and कम से कम around 1 lakh 2 lakh rupees आपको spend करने पड़ेंगे, है ना? I hope I have answered your question. Great. Any more question, guys? सर सॉफ्टवेयर टेस्टर टेस्टिंग कोर्सेज आर अवेलेबल है क्या इधर, मतलब मुंबई में किधर? Widely available. I'm sure you guys are not aware of Squad Infotech, but I would like to take a few minutes to tell you about Squad. Squad Infotech, you can Google it up. Okay, on our website you can go and check. There are multiple websites we have, because we have a lot of divisions for different courses. Primarily, Squad Infotech was launched in 2010. Okay, with the first course in software testing, and then slowly, steadily down the line, due course of time, we started up with Java, Python, PHP, .NET. Then we came up with digital marketing. We are also having courses related to AI, machine learning, data science, blockchain development, network security, ethical hacking, CCNA, Red Hat Linux, almost every IT courses. You name a course, we have it. We have different versions of training. We have online live training, and we have classroom training. For classroom training, we have limited courses. For online training, you name a course, we have it. Okay, like for classroom training, we have software testing, we have Java, we have Python, we have PHP, we have .NET, we have designing courses, we have networking courses, we also have this one, digital marketing courses. Okay, so you have a lot of institutes in the market, but for software testing especially, I guarantee you that you will not find a better institute than Squad Infotech. I'm telling you this in open platform, because I believe in Squad. I believe in the product of software testing, because we have spent almost 10 years in software testing. We have around 3,500 plus companies in IT where we deal with the software testers requirement. So we have seen a lot of things about software testing. Okay, more information about every courses, if you want, I will ask my counseling team to help you out whenever in future you want. Okay, this is my contact number on screen you have. Okay, this number is available on WhatsApp as well as on Telegram. Okay, you can chat with me, share your requirements. For guidance, you can directly contact me. For courses and all those stuffs, this is not the platform to promote any course, but in case in future you need, as I already said, around 70% of you will be doing a course in future for sure,
I guarantee on that part, because it's my experience, and experience never goes like that only. So आप 70% लोग जो है जिनको कोर्स करना रहेगा, प्रेफरेबली पहला गाइडेंस स्क्वाड से ले लो, स्क्वाड के कोर्सेज के बारे में देख लो, सही लगता है तो स्क्वाड से करना है, फिर किसी और इंस्टीट्यूट से कर लो, नो प्रॉब्लम, बट गाइडेंस के लिए हमेशा स्क्वाड में आ जाना, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम डियर। Madam, can you share the feedback link on the screen? I mean, on the chat box. I'm done with my communication. Yeah, thank you, sir. I'll be sharing. Till the time Madam is sharing the feedback link, Thank you, sir. anybody's have any Yes, question? yes, sure. I'll be sharing this. Yes. Students, do you have any other questions? I No, hope. ma'am. Okay, I hope people are cleared. And thank you, sir, for motivating our students and imparting ideas. And hope the students got the insight and they will be following all the ideas or like guidance you have provided. So just I'll post the link over here. Okay. Yes, sir. Students, 1 second. Let me just put my screen onto gallery mode. I'm taking some screenshot of this session so that I can use it for my record. Okay. The feedback link, Madam, you're sharing on this chat box, right? Yes. Is it fine if I share this on the students group? We have a separate. That will be really great. But student, those who have not attended the session, they will also fill the form. So, okay, that will be just a minute, I'll share this. If that is not no, that's right. That's right. Because I don't want unnecessarily to get benefited out of the session, those who have not attended it. Yes, sir. Just punishment for them. So I have posted it. I hope students will be responding to it immediately. Okay. Students, please fill the form. The feedback form is posted on the group. Please fill it. And okay, I have also. Thank you for helping out our students today, sir. Most welcome, madam, and I would love to help them in future as well. Okay, whenever you have any queries or any kind of guidance you want for these students, I'm open for it. What's your name? My name is JP Rao. Rohan, I have introduced him properly in the starting. I hope you are not there. Yes, ma'am. Let's join later. No problem. So is JP Rao from Sparring Today. He's a sales manager. Take it. Students, is there any doubts? Like we can. Any last moment questions? Yes, sir. Can we? If no more questions, with your permission, I am ending the session here. I once again thank you to all the students who have joined us here today, and to the college as well for organizing this webinar for them. And we are having good relationship with the college, MD College. Thank you to Pallavi madam, and thank you to Bhairavi madam
for your time, and Yes. see you next time. Bye-bye. Yes. Thank you. Sir. Thank Yes, you, sir. sir, for your guidance. Most welcome, guys. Bye-bye. Yes. Thank you, sir. Have a Welcome. good day, sir. You too, guys. Bye.